how much of a battle is it to fight against Kejriwal? यहाँ का जो वोटर है उसको एज ए विधायक बिल्कुल माने तो निकम्मा विधायक दिखता है। आपका जो पंडारा पार्क वाला घर था, वहाँ पे वो आते थे, स्ट्रेटेजाइज करते थे आपके साथ बैठ के। So you know him, don't you? नहीं, इतना भी नहीं, आप मरवाओगे मुझे। You also called him a ढोंगी, आम आदमी, his image is of an honest person and you are accusing him of corruption. Is that the ढोंग? तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी गाड़ी में नहीं बैठेगा, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी बंगले में नहीं रहेगा, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी कहेगा कि मैं जनता के बीच में जाकर निर्णय लूंगा। वो उस समय भी मुझे मालूम था जब इनके दोस्तों से भी बात करता था ड्यूरिंग लोकपाल बिल, ही वाज एन ऑटोक्रेट। Ajay Makan had called Arvind Kejriwal as anti-national. अगर वो कोई की क्लेम करेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता होगा, वो बिल्कुल हवा में नहीं बोलते। In some way, it's your tribute to your mother to fight this election. To some extent आप कह सकते हैं। एक तो जो पर्सनल उसने एक हमला किया, I think it was personal. I don't think it was political. Did she feel let down by the Congress party? Yes, I think उनको ये लगा कि मुझे डिफेंड क्यों नहीं करना। न्याय यात्रा हुई थी, उसमें भी नहीं आए थे कोई भी, ना राहुल गांधी आए, ना खरगे जी आए, ना प्रियंका आई, कोई भी नहीं था। जेपी अग्रवाल वहाँ नहीं दिखे, पूरे चांदनी चौक के एरिया से निकले। तो फ्रिक्शन है क्या अभी भी आप लोगों क्या? शायद फ्रिक्शन नहीं है, शायद मुझे लगता है कुछ सीनियर लीडर्स सेल्फ रिटायरमेंट मोड में हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। Are you the face? Are you the CM? No. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is Sandeep Dikshit, Congress leader fighting from the constituency of New Delhi. This is a very interesting battle in New Delhi constituency because it's a three-cornered battle. On the one side is the former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. On the other side is Parvesh Verma of the BJP. And on the third side is our guest today, Sandeep Dikshit. The BJP is fighting tooth and nail to decimate the AAP led by Arvind Kejriwal and return to power after 25 long years. The Congress is in alliance with the AAP in other states as part of the anti-BJP group called the India Alliance and has decided that the AAP has to be defeated, else it will gobble up the space that the Congress occupies in many states. It did so in Delhi and Punjab and to some extent in Goa. But till the time of filing this podcast with Sandeep Dikshit, the Congress campaign has been lackluster. Other than Dikshit, no one is campaigning in right earnest. Accompanying me in the podcast today is my colleague Siddharth Sharma. Sandeep ji, thank you so much for being part of the podcast. I'm most grateful to you that you could spare time और आप election campaigning के दौरान आए आप. So both of us are very happy that you're here. Thank you. It's a battle which is very interesting, the New Delhi constituency. Two sons of former chief ministers fighting. And you have Arvind Kejriwal, who's been chief minister several times over. You as a son of the most popular chief minister of Delhi, Sheila Dikshit, undoubtedly. For you, how much of a battle is it to fight against Kejriwal? देखिए बैटल वाइज ये माने मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, मेरा चौथा है, और शीला जी के चुनाव कांग्रेस के लड़ चुका हूँ। कहें तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल, मोस्ट एक्साइटिंग बैटल एक्चुअली। टफ तो देखो सब होते हैं और स्वाभाविक है, आप सीएम के खिलाफ लड़ो। कांग्रेस की आप सब जानते हैं हालत बहुत अच्छी नहीं रही है, मतलब एक समय में तो वाइप्ड आउट ही मान लो। तो वहाँ से आगे बढ़ना तो पार्टी का उसके वोट का जो चैलेंज है वो चैलेंज है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सनैलिटी के खिलाफ लड़ रहे हो जिसको एक समय मतलब बहुत बड़े लेवल पर माना जाता था। कुछ लोग कहते थे प्रधानमंत्री तक बन सकता है, ये कहते थे कि क्या वैकल्पिक राजनीति एंड ऑल, वो सब जो भी कहानियाँ चलती थी। तो उस मामले में ये था कि नहीं, इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग इलेक्शन। और जैसे स्मिता जी मैं इलेक्शन में घुसता चला गया, क्या होता है जब आप कई नई चीज़ में जाती हो तो आपके मन में कुछ चीज़ें होती हैं कि मेरी ये चुनौतियाँ होंगी और ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अच्छा ये लगा कि वो ऑलमोस्ट इलेक्शन वैसे बैठ रहा है। हाँ, जो मुझे एक समझ थी केजरीवाल की, कुछ समझ पहले की थी, कुछ समझ इनके 10 साल की थी, वो समझ मुझे लगा थोड़ी बहुत सही है कि ये क्या कर पाएगा, क्या करेगा, कैसा करता है, क्यों करता है, किस पैंतरे पे कब बैठता है, लोगों के बीच में क्या होगा। काफी हद तक मुझे लगा कि इट्स नॉट बैड यार, संदीप, यू नॉट सो बैड, राइट? यू नो हिम बिकॉज रिपोर्टर्स तो सब कहते हैं कि देखा हुआ है आपके यहाँ बैठे, आपका जो पंडारा पार्क वाला घर था वहाँ पे वो आते थे, स्ट्रेटेजाइज करते थे आपके साथ बैठ के। सो यू नो हिम, डोंट यू? नहीं, इतना भी नहीं। आई मीन लेट्स नॉट ओवरडू द थिंग, बट हाँ मैं 2 मिनट अगर लूँ तो मैं बता दूँ।
इसी 2004 जब मैं जीत के आया था, मैं उसके पहले वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। एंड मैं नॉर्मली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ बिकॉज एनजीओ का बड़ा अलग मतलब होता है। वी यूज्ड टू एक्चुअली वर्क इन फेयरली हम्बल एनवायरमेंट्स। एनीवे, तो वहाँ अरुणा रॉय जी हैं, ये MKSS में, हाँ, उनको भी मैं जानता था। और तो उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि संदीप, हमारे एक सहयोगी हैं दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, और उसका RTI में बड़ा काम रहता है और मैग्सेसे अवार्ड विनर है। तो आप कोई भी मैग्सेसे अवार्ड सुनेगा तो मन में बड़ी रिस्पेक्ट आएगी कि यार आदमी ने समाज के लिए कुछ अच्छा किया होगा। तो मैंने बड़ी ईगरनेस दिखाई। मैंने कहा नहीं सर, मैं बड़ा अच्छा, आप बताओ, मैं मिल के आऊँ। कहने का नहीं, वो मिलने आना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस समय क्या हुआ था, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद का पढ़ा हुआ हूँ। तो 2 वहाँ के स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे कि हम लोग उस समय ये जो है ना, इंटर्नशिप नहीं होती थी। तो दे सेड कि आप हो, हम लोग चाहते हैं कि नई तरीके से पॉलिटिक्स खेली जाए। तो वो सब होता है ना, एक बचपन की एक आग होती है। तो दे वर वर्किंग इन माई ऑफिस। उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत अच्छा वो आए। तो ही केम वन डे टू सी मी। 2014 की एंड की बात होगी, 15 बिगिनिंग होगी, ठीक से याद नहीं है। एंड ही सेड कि देखा दाखा अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, लुक लाइक अ डिसेंट फेलो, इनकम टैक्स का था। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि किस तरह या पॉलिटिक्स होती है, क्या डे टू डे एंगेजमेंट होता है, क्या MP के चैलेंजेस होते हैं, लोग क्या समस्याएं लेकर आते हैं, मैं देखना चाहूँगा, सीखूंगा, देखूंगा, जैसे कोई कहता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो हमारा क्या था, एक छोटा गैराज था जिसको हमने पब्लिक रूम में क्रिएट किया था, और वहाँ चिट्ठी टाइप होती थी, बातचीत होती थी, और फिर मेरा कमरा था जहाँ हम फाइनल करते थे। तो जो भी आते थे मुझे मिलते थे, ये सब। तो वो 1 आध 2 दिन बैठे वहाँ पहले। तो फिर उन्होंने कुछ मुझे ये कहा कि इसका ऐसा करो, ऐसा करो। फिर 4-5 दिन वो वहाँ बैठे रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो मुझसे मिले और अपना कुछ फीडबैक दे रहे थे। तो उसमें मुझे लगा कि यार ये उतना बैलेंस नहीं है। सॉरी, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं उस समय जो था, उसने मुझसे कहा कि संदीप जी, आप कमरे के अंदर क्यों मिलते हो, खुले में मिलो। तो आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू से कि कमरे के अंदर भी तो खुला है यार, ये कोई चेम्बर्स थोड़ी हैं भाई। एक समय में 20-20 आदमी लदा हुआ है, कोई किसी को स्कूल एडमिशन करानी है, किसी को अस्पताल का है, किसी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, किसी को ट्रांसफर चाहिए, जो होता है सामान्य। तो मैंने कहा क्या मतलब है? कहने का आपके सामने पंडारा पार्क में मैदान है, मैदान में बैठा करो, और कुर्सी में इसकी क्या जरूरत है, वहां खुल के करो। सो आई सेड, ये ऑलमोस्ट थॉट कि पागल है क्या। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरविंद जी, लोग आते हैं काम कराने, या तो मैं हर के दफ्तर में भाग के जाऊं, नहीं तो फोन करूंगा या चिट्ठी लिखूंगा। चिट्ठी लिखूंगा तो या तो टाइपराइटर चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। तो ही काइंड ऑफ डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड ऑल दी, ये वही, मैं बंगले में नहीं रहूंगा, मैं लाल बत्ती करूंगा। तो मुझे लगा यार ये सीरियस आदमी नहीं है। एनीवे, वो तो जो था सो था। तो कुछ दिन वो रहे, उसके बाद उनको कोई 2-3 प्रॉब्लम्स हुई। वो वहाँ सुंदर नगरी में कुछ राशन कार्ड पे कुछ RTI का काम किया करते थे। सीमापुरी। हाँ, सुंदर नगरी सीमापुरी के पास है, जहाँ इनकी शायद कोई NGO रजिस्टर्ड है। वहाँ 2-3 बार किया करते थे। तो ये कहानी खत्म हो गई। फिर मुझे 2009 में चुनाव हुआ, और 2009 में मुझे एक बार फिर वो निखिल डे जी हैं, काम करते थे अरुणा रॉय जी के साथ, उनका फ़ोन आया कि हम लोग यार, आप हो और आप चुनाव लड़ रहे हो, इस समय कांग्रेस की अच्छी वेव है, आप जीत रहे हो, हम चाहते हैं कि मदद करें इलेक्शन कैंपेन में आपका। तो मदद तो हर आदमी से एक्सपेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि एक यार हमको थोड़ा सा हिस्सा दे दो, हम चाहते हैं नई तरीके का कैंपेन करें, ऑलमोस्ट विदाउट एनी एक्सपेंस। सो आई सेड वंडरफुल भाई, अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो कितना अच्छी बात है। तो उनका ठीक है, आए, कुछ अपनी बातचीत की, कुछ आई डोंट रिमेंबर कौन कौन था। फिर उनका कि अरविंद जी भी उसमें मदद करेंगे। आई सेड वेरी गुड। अब मैं बस कभी कभी हंसी मजाक आता है इस बात पे। तो मैंने कहा आप एक वार्ड आप ले लो, मेरे अंदर 40 वार्ड थे, क्योंकि मेरे को भी डर था यार कि कहीं एक टेक ओवर कर ले कैंपेन, मेरा कार्यकर्ता सर पे चढ़ जाएगा, वो तो मेरी ऐसी तैसी कर देगा। अल्टीमेटली चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ाता है ना, MP इज ओनली ट्रांजिएंट। तो आई सेड ओके, आई गिव यू 1 वार्ड। और इनका शकरपुर के पास कहीं ऑफिस था, तो वहाँ विनोद नगर और ये करके 2-3 वार्ड थे। हमने कहा कोई एक ले लो। देन ही ब्रॉट अ बिल, expense estimate of 40 lakhs for a ward. Okay. I know. मैं तो सितारे दिखने लगे। So anyway, I just put these two आपका बजट together. कितना था उस वक्त एक वार्ड के लिए? मैम उस समय लाख से भी कम होगा। हाँ, इतना नहीं खर्चा होता था। आपको मालूम है ये दिल्ली में उस तरीके का खर्चा होता भी नहीं है। Correct, जो ऑफिशियल है वो तो शायद 80-90 जो भी है, पर दिल्ली इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव। What did you think? He was trying to manipulate books? No, I don't think he was being financially dishonest. I don't think so. But at least let he me give didn't him make credit. But I think he was intellectually not
not in grasp, and एक IRS के आदमी है, कैसे कह सकते हैं कि he didn't understand that's numbers? no, I don't think I think he understands numbers only when it suits him, और इसलिए मुझे हमेशा लगा है कि there is something very major problem with it. He separates his mind, almost for the first time I'm saying this, but there are two categories of people. There are people who are immoral. All of us are immoral at some point or the other in our lives. Okay. Right? None of us can say, Sure, that. of course. And We'll all be of the us, Buddha then. Yeah. All of us have done. I'm sure even the gods, when they come down to earth, they show both through their good deeds and bad deeds how human beings should live. But some people are amoral. And I think that's a dangerous category. Amoral में क्या है? जब अपने पर बनती है, तो आप मोरालिटी को उसमें नहीं डालते, तो आप सच और झूठ का अंतर या गलत सही का अंतर नहीं समझ पाते। तो ये आप 2009-8-9 के मुझे लगा था, मुझे कई बार ये लगा कि ऐसा इस आदमी में, उसके बाद बहुत सरोकार नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा ये जन लोकपाल का बिल चल रहा था, हंगामा चल रहा था, ये उसमें इंचार्ज वो थे, बड़े नेता बन गए थे। तो एक दबार मैं कहानी बताता हूँ, मैं लोधी गार्डन में दौड़ने जाता था, अभी भी थोड़ा सा रनिंग कर लेता हूँ। तो माई डॉटर एंड आई वर रनिंग, और मैं दौड़ रहा था, तो सडनली मैंने पीछे से सुनाई पड़ा, ये देखो चोर भाग रहा है। एंड दैट हिट मी, somebody shouted, वो सब हो गया था, 2G 3G एंड ऑल इट हैपेंड। और मैंने मन में कहा यार ये तो कहानी हाथ से निकल रही है हम लोगों के, अगर पब्लिक में ऐसा कहने लगे। सो आई थॉट पब्लिक परसेप्शन वाज सीरियसली गोइंग, जिस तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये बात कर रहे थे। तो मैथ्यू, अगेन दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज देयर, आई कॉल्ड मैथ्यू, आई सेड मैथ्यू यार तुम भी याद है, यू रिमेंबर केजरीवाल एंड ऑल? मैंने कहा यार उस समय रीजनेबली लोग थे, ये इस मूवमेंट में इनसे बात करते हैं। तो ही सेड फाइन। आई थिंक ही वेंट ओवर टू रामलीला मैदान, उस समय रामलीला मैदान शुरू हो गया शायद, वहाँ गए, और वट एवर ही मेट, विच एवर वन ऑफ देम ही मेट, सो दे वर वेरी कीन, दे से नहीं, वी वांट टू ओपन डायलॉग विद द गवर्नमेंट। और मुझे जानते थे, कहने का नहीं, हम उनसे मिल लेंगे। तो फिर हमारे एक कॉमन कॉन्टैक्ट थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम, सरकार में थे उस समय, उनके घर पर हम, मेरे घर के पास ही, पंडारा पार्क के पास ही उनका घर था, तो सुबह लिए भी शूटिंग था, तो वहाँ वो आए रात को, और फिर वहाँ हम लोगों ने पहली बातचीत की। तो उन्होंने कुछ बताया किस तरीके का जन लोकपाल चाहिए, उसमें बहुत सी इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ें थी, CBI हो जानी चाहिए इंडिपेंडेंट, कोई आ जाए समन हो जाए उसको बुला लो। उनका ये भी कहना था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैड पड़ा हुआ है, अगर ये मेरे घर में पड़ा है, ठीक है, और अगर मेरे घर में है और मैंने नहीं खरीदा, तो इसे भी रिश्वत माना जाए। मैंने कहा यार कल को कोई मिठाई का डब्बा ला रहा है, वो रिश्वत है क्या? कोई शॉल दे रहा है, कोई रिश्वत है क्या? ठीक है, आप एक्सपेंसिव गिफ्ट ना लो, बट come on, let's separate real dishonesty, with this kind of ये तो showmanship होती है। At that time, when you had this conversation with him, at no point did he mention or did you mention that don't attack my mother personally? उस समय शुरू नहीं हुआ था वो। अच्छा, उस समय वो नहीं शुरू हुआ था, उस समय ब्रॉडली चल रहा था, और उसने कहा था जन लोकपाल करेंगे, था थोड़ा बहुत ये सब था, दिल्ली में भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ को लेके कुछ बातें करते थे, पर वो जो एक तीखापन और एक जो एक शब्दों में जो एक तलखी और एक ऑलमोस्ट कहें बदतमीजी जो इसकी बाद में आई, वो उस समय तक नहीं आई थी। उस समय वो था मेरा नेता चोर है, ये है, और वो अन्ना जी को गांधी जी बताना, और वो सब कहानियां चल रही थी। पर हमारा पर्पस ये था कि साहब जो ये कह रहा है उसको अलग रखो, किसी तरह ये मसला सुलझाओ। सरकार से भी जो मेरी बात की, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था वो लोकपाल में। दे वर ओनली सेइंग कि यार इसके ये जो ऑलमोस्ट माफ करिएगा बड़ी जो बेवकूफ़ी की चीज़ें, इसको हटाओ, लेट्स गेट अ रीजनेबल। बट देन आई थॉट कि ये आई डोंट थिंक दे वांट अ लोकपाल बिल। आई वाज वेरी वेरी कन्विंस्ड। मैं एक that he had political ambitions. ये मुझे उस समय somehow I didn't think so, और मेरी गलती मानिए, सही, क्योंकि मुझे दिग्विजय सिंह जी ने कहा एक बार, ये तुम क्या कर रहे हो, उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो तुम ही लोगों की कबर खोद रहा है। ही टोल्ड मी दैट, आई एडमायर हिम फॉर दैट, बट एनीवे आई सपोज आदमी करता है ये सब। मैं एक फाइनल छोटी सी स्टोरी बताकर बताऊं कि जब मुझे एक्चुअली में पता चला ये कहाँ थे। आपको याद होगा एक दिन भर की डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में लोकपाल बिल पे, ठीक है, देर रात तक चली, नहीं 6-7 बजे तक चली थी। उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक पत्र लिखा और उसमें कुछ कहा कि भाई मैं अन्ना को भेज रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अब हम जन लोकपाल बिल कंसिडर करेंगे, दिन भर ये फीडबैक आया है, इसके ऊपर जन लोकपाल बिल बनेगा। तो उन्होंने विलास मुट्टमवार जी को, कि वो जानते थे अन्ना को, उनको फ़ोन किया। तो विलास राव देशमुख जी, तो विलास राव देशमुख जी ने विलास मुट्टमवार को बुलाया कि साथ चलो, दोनों महाराष्ट्र के थे। सडनली आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम विलास राव जी, संदीप कहाँ हो? मैंने कहा सर पार्लियामेंट में घर जा रहा हूँ। इसे यार तुमने इतनी मेहनत की है, हम लोग जा रहे हैं मंच पे, तुम साथ चलो, यू शुड ऑल्सो गेट सम क्रेडिट। आई थॉट वेरी ग्रेट ऑफ हिम। नहीं तो इतना बड़ा नेता भाई मुझे क्यों, एनीवे
तो जब हम निकलने लगे तो फिर मैंने इन लोगों को फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, हाँ 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 बिल्कुल आओ। तो मेरे कुछ वो इनके ग्रुप में नेचुरली कुछ हमारे दोस्त भी थे। मैंने कहा यार वो पीछे जो गेट है वो खुलवा देना और हम लोग पहले जाकर। तो विलास राव जी ने कहा कि मैंने अन्ना से बात कर ली है, मैं पहले उनको ही मिलूंगा। मैंने कहा सर अच्छी बात है। तो हम लोग अम्बेसडर आई, उतरे और बड़ा भारी वो जो रामलीला गेट में पीछे का गेट होता ना मंच से पहले, वो बिल्कुल ऐसे बैरिकेटेड था जैसे पता नहीं कोई वो अंदर कोई टेररिस्ट हो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 5-6 ताले, वायर्स, न जाने किस तरीके का इंतजाम कर रखा था। फिर वो पुलिस वालों ने उसको किसी तरह मदद करके खोला। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अभी वो पुरानी पिक्चरें होती है ना जिसमें खंडहर वाला घर चे करके खुलता है कि आपको अंदर न जाने कौन सा वो 20 साल बाद टाइप की कोई कहानी वो खुली। आई मीन इट वाज क्वाइट ड्रामेटिक। सो एनीवे वी वॉकड अप द स्टेप्स। तो वहाँ 11-12 लोग वो जो महाराष्ट्रियन टोपी होती है ना, गांधी टोपी बड़ी वाली, वो करके खड़े हुए थे। आई थिंक अन्ना ने अपने पुराने लोगों को कुछ बुला लिया था। ऑल ऑफ देम रिकॉग्नाइज विलास राव जी। इनको लेके जब हम ऊपर गए तो मंच के पहले दाहिने तरफ को इन्होंने एक झुग्गी सी क्रिएट कर रखी थी। वो भी मैंने कहा यार ये झुग्गी मतलब क्या तुम दिखाना चाहते थे गरीब हैं उसमें रह रहे हैं झुग्गी टाइप की। मैं दे हैड ऑल द पैराफर्नेलिया टू इम्प्रेस द मीडिया व्हिच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन एट दैट टाइम। एनीवे तो उसके बाद हम जैसे ही गए, दिस जो 11-12 लोग थे दे ऑलमोस्ट पुल्ड द थ्री ऑफ अस एंड टुक अस इनटू द हट इन विच अन्ना वाज सिटिंग। हम लोग अंदर गए और उसके बाद कुंडी बाहर से बंद कर ली और ये इन्होंने अंदर से बंद कर ली। तो विलास राव जी, विलास मुट्टेमवार साहब, मैं, अन्ना बैठे हुए थे और कोई एक और इनका आदमी था। इनके आपस में दे मेट, विलास राव जी एंड अन्ना मेट एज इन ओल्ड फ्रेंड्स। तो बल्कि उन्होंने तो उनको रिस्पेक्ट भी दी, बैठ गए और कुछ बात की। और मुझे विलास मुट्टेमवार जी वो कर रहे थे, मराठी का जो है ट्रांसलेट कर रहे थे। मैं पूछ रहा था सर क्या बात हो रही है, तो उन्होंने बताया कि उसने कहा कैसी है चिट्ठी, उनका ठीक है। तो उसने कहा पढ़ के सुना दो, तो उन्होंने पढ़ के सुनाई। तो हाँ आई सेड हाँ हाँ ठीक है। देन सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स ही सेड। स्मिता जी मैं पहली बार इसको ऑन एयर आपके चैनल पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ एंड आई से दैट दिस इज एवरी वर्ड इज अ ट्रूथ। ही सेज कि आज जब हम बाहर जाएंगे ना, सीधे मंच पे जाना और ये चिट्ठी किसी को मत देना, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी, दैट्स व्हाट ही सेड। ही सेड विलास राव जी आप सीधे मंच पे जाना, चिट्ठी पढ़ना और मैं इमीडिएटली कह दूंगा मैं अनशन तोड़ रहा हूं, मुझे अनशन नहीं तोड़ने देंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। वॉट एवर, मैं सबको साक्षी मान के कह रहा हूँ, मतलब आई डोंट स्वेयर ऑन एनीबडीज नेम, आई डोंट वांट टू डू दैट, दिस वर हिज वर्ड्स। क्या वहां चल रहा होगा ये आप अटकले लगाओ, बट दिस इज व्हाट ही सेड। सो वी सेड ठीक है। फिर मैंने भी नमस्कार किया। मैं अन्ना को मिला था 2002 में छत्तीसगढ़ में, तो ही आई थिंक ही रिकग्नाइज्ड। मैंने नमस्कार किया। फिर हम लोग लाइक वो जो होता है ना मिलिट्री प्रोसेशन, बाहर निकले। ये 11-12 लोग घेरे थे। हम ऊपर मंच पे गए तो वहाँ मनीष जी ये लोग थे, हाथ मिलाया। ये लोग तब तक आ गए थे गेट पे बाहर, बिकॉज दे हैड सडनली कम टू नो कि आए हुए। आई थिंक जब मैं बाहर गया हूँ तो किरण बेदी जी थी और ये थे मनीष सिसोदिया थे, उनके कोई 2-4 और थे। किरण जी मैं पहले से जानते थे, दिल्ली पुलिस, शी वाज आल्सो क्लोज टू माय मदर, यू नो। तो शी एटलीस्ट स्माइल्ड, मे बी शी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, आई डोंट नो। और उसके बाद जब हम गए तो जैसे सामने यूँ मंच लगा था, यहाँ से विलास मुट्टेमवार जी यूँ भाग कर उस पर गए। ही केम इमीडिएटली, सैट डाउन देयर, डिड नॉट स्पीक टू एनीबडी। जैसे इन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आप अगर रिकॉर्ड्स निकाल के देखिएगा शायद, तो आई थिंक अन्ना जी पुल्ड द माइक एंड सेड अब ठीक है ना, अब तो मैं अनशन तोड़ सकता हूँ। एंड देन ही डिक्लेयर्ड। तो क्या वहां चल रहा था, इट्स रियली फॉर ऑल ऑफ यू टू डिसाइड। So he was being used at that stage? यूज्ड, थ्रेटन्ड, और ही डिड नॉट नो कहाँ फंस गया था मैं। इनके डिजाइन अलग थे, उनके अलग थे। आई सेड कि ये सब अटकलों की बात है, ये चीजें मैं उसमें क्या जाऊं। लेकिन अच्छा एक और था ना स्मिता जी, मैं किसी को कुछ कहता भी, हम लोग इतने बदनाम थे कि अगर मैं लोगों को कहता कि ये सवेरे सूरज उग रहा है तो लोग कहते ये कांग्रेसी है, झूठ बोल रहा होगा, आज शायद सूर्य उदय ना हो। था एक होता है कभी कभी, यू नो, एक डिसबिलीव लोगों की हो जाती है उसमें। आज शायद मैं ये बात कहूं तो हो सकता है 2-4-5 मान भी लें कि शायद संदीप कभी कभी सच बोलता होगा, उस समय तो कोई मानता ही नहीं था। इसमें सिर्फ यही कि आपको ये ऐसा नहीं लगा कि एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन और एक पॉलिटिकल जो है वहाँ पर सिनेरियो बन गया है, क्योंकि बाद में ये चीज़ देखी गई कि सबका अलग अलग एक जो है व्यू था। किरण बेदी का अलग व्यू था, शांति भूषण सामने थे। शांति भूषण तो ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात हुई तो शुरुआती 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और ये भी कहा था कि अन्ना ने उस वक्त में कि ये बात
सामने ऑन रिकॉर्ड है कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक पार्टी बनी और ये सब चीज़ें दोबारा जो है रामलीला मैदान से जब दोबारा जंतर मंतर पे आए थे तब की बातें मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है, आई थिंक आई मिसरेड, लेट मी बी, I think entire Congress misread, right? किसी को कानों कि कान खबर पॉलिटिकल से नहीं पॉलिटिकल एम्बिशन हो गए, ये भी मिसरेड। कपिल सिब्बल सब लोग गए थे उस वक्त हाँ, कि किसी को ये नहीं कानों कान खबर नहीं थी that there was a bigger agenda. जी, वो नहीं और पता था। हाँ, वो but नहीं पता। then when he started attacking your mother personally, मतलब ऑटो रिक्शाज ऑटो में रिक्शा पे। पोस्टर्स बेईमान, लगाना, ईमानदार। and you know it was a very personalized battle. वेरी विशस, Very vicious. बहुत ही घटिया कहें, जहरीला कहें, जो भी कहें। So, but it clicked with the voters. It did. What did you feel at that time that there was one image of your mother which was like a hero for Delhiites, had rejected the BJP, even the middle class for whom BJP was the option for Right. so long. Especially in Delhi. In Delhi, right? I'm still talking only about Delhi. Had, you know, Sahib Singh Verma को छोड़ो, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, सबकी हिस्ट्री वाइप ऑफ हो गई और शीला जी was a hero for everybody, including the middle class. Up from every section, she was the hero. But they believed Arvind Kejriwal They did. at that time. So what did you feel as a son at that time? What was going on in your mother's mind at that time? देखिए, दो अलग अलग, आई थिंक उनका, लेट मी टेक इट पहले। आई थिंक सी बड़ी देर तक, क्योंकि जब ये शुरू हुआ तो शायद उतना लोगों में रिएक्शन नहीं था शुरू में, बट मेरे ख्याल से वहाँ, एंड बिकॉज शी इज एन ओल्ड स्टाइल, वॉज एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन शायद, और शायद वो उस तरीके की थी कि तीखी बातें, भद्दी बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। हमने तो 2-3 बार उनसे कहा कि नहीं, दुनिया थोड़ी बदली हुई है। उनको ये लगता था कि आई विल ओवरकम ऑल दिस, मेरी एक इमेज है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप पर्सनली जानते हैं कि आपने वो कुछ नहीं किया जो आप पे कहा जा रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता है। और आपने देखा होगा शी ऑलवेज अ वेरी कॉन्फिडेंट वीमेन, यू नो, इवन इन हर लास्ट डे, बीमार भी जब थी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज देयर इज अ सेल्फ प्राइड इन हर, यू नो, जब आप अच्छा काम करते हो तो एक रहता है कि नहीं यार, मैं कुछ करके जा रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक शी रियली गॉट दैट। जैसे 2-3 बार हम लोगों ने बात पे कहा तो उनका, नहीं यार, मैं जाती हूँ, लोग अभी भी प्यार करते हैं, मेरे पास आते हैं, लोग स्नेह करते हैं। वो मुझे लगता है कुछ इसका जो एक तरीका था, और दूसरा एक तो थोड़ा सा निर्भय की बात, जो बहुत ज़्यादा तीखापन हो गया। मतलब इनके ऊपर चप्पलें फेंकवा देना, हूटिंग करवा देना। मतलब मैंने देखा एक आध कार्यक्रमों में लड़कियों को आगे भेज के ऑलमोस्ट ऐसे चिल्लाना कि जैसे शीला जी ही रेप करवाती हैं दिल्ली में। बहुत भद्दापन मैंने देखा। दैट हर्ट हर ऑल्सो। एंड मुझे लगता है कि कहीं एक 20% शी विड्रू, you know, वो I think she felt deeply hurt. Did she feel let down by the Congress party? Yes, also. I think उनको ये लगा कि मुझे डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। I'm not saying she put a blame on them. मैं किसी पे उंगली भी नहीं उठा रहा, बट आई थिंक उनको लगा कि यार मैं अकेले क्यों लड़ रही हूँ, you know. Did you feel like that? I Because also thought. you were in the party also, I and also you thought. were also her अब son. जैसे सिंपली अगर आप कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट्स ले लें, हाँ. ठीक है भाई, आती हैं सीएजी की रिपोर्ट्स आती हैं। मैंने कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट देखी, उसमें नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद दैट। आपको याद होगा मुन्नी मरहूम जोशी जी चेयरमैन थे, उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट निकाली तो कुछ कलमाडी पे, कुछ इधर उधर, दिल्ली गवर्नमेंट पर कुछ नहीं आया। उसके बाद वही सीएजी की रिपोर्ट एक दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर भी आई, जो गई और जो 2015-16 में एग्जामिन हुई, जब पूरी की पूरी पीएससी, इनके तो 67 थे ना 70 में से, तो केजरीवाल के लोगों ने देखा। वो तो सवाल मैं आज तक केजरीवाल से पूछता हूँ कि जो दिल्ली सरकार के ऊपर आई थी सीएजी की रिपोर्ट, उसमें तुम्हारी एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ है? तो उसमें भी कोई बहुत खास नहीं था, पर ऐसा लग रहा था कि एक वही अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। भाई अच्छे खेल हुए थे, ठीक है, एक हंगामा था, उसके पहले कुछ लेट हो गया, कुछ डिले हो गया, वो होता है। और कुछ हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है कि 12वें घंटे में हम लोग कुछ ज़्यादा तेज हो जाते हैं। बट यू नो, इफ यू रिमेंबर ऑल द वेरियस डाउट्स दैट वर पुट, आई थिंक द ग्रेट कंडक्शन ऑफ द गेम्स सेटल दैट। आज भी कई बार कॉमनवेल्थ की सड़कें हैं जिनमें आज भी गड्ढे नहीं हैं, आज भी वो स्टेडियम हैं जो बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। तो आई थिंक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। Is that one of the reasons why you decided to take on Kejriwal in this election? That it's somewhere rankles in your mind कि
I won't use the word badla, revenge, but in some way it's your tribute to your mother to fight this election. टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं, पर इसमें देखो दोनों हैं. एक तो जो पर्सनल उसने एक हमला किया, आई थिंक इट वाज पर्सनल, आई डोंट थिंक इट वाज पॉलिटिकल. देखिए हम हमला करते हैं, मोदी जी पे भी कहते हैं, अमित जी पे भी कहते हैं, सब पर कहते हैं, पर हम भी जानते हैं कि पॉलिटिकल हमला होता है. पॉलिटिकल हमले को पर्सनल अगर आप करेंगे, कभी कभी निकल जाता है सबके मुंह से, मैं मान सकता हूँ. जैसे हम में से कोई भी भगवान नहीं है, हम कभी गलती कर देते हैं, लेकिन उसका एहसास भी होता है. आशा करते हैं कि कोशिश करते हैं ऐसे शब्द फिर कभी ना इस्तेमाल करें, और मानते हैं मन में ग्लानि होती है, पर उसको आप कॉन्स्टेंटली अपना एक एजेंडा बना लें कि आपको उस व्यक्ति को भी बर्बाद करना है, केवल उसकी राजनीति को नहीं. वो जो एजेंडा इन्होंने उठाया, और मुझे लगता है उसको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से साफ करना, एक तो वो जिम्मेवारी बेटे के रूप में तो मेरी बनती है. कांग्रेस उसको चाहे, कोई और पार्टी चाहे ना चाहे, क्योंकि वो तो ज़रूरी है. उनका जो काम 15 साल का, वो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो चलो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कम से कम उसको भी वापस लाना. एंड जब मैं बार बार पूछता हूँ यार कि भाई 10 साल में कहाँ हैं वो हथकड़ियाँ, कहाँ हैं वो 350 पेज की रिपोर्ट. मतलब मैं अब ऑलमोस्ट बोर हो गया हूँ इस बात को बार बार पूछ के, पर वो 1-2 सवाल तो बनते हैं ना, कि आपने अगर किसी को ऐसा कह दिया तो यार कुछ तो होता तुम्हारे पास. लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं. आई हैव सीन दैट इन ऑल देयर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे आर अटैकिंग द बीजेपी, ही इज अटैकिंग मोदी जी, लेकिन आप पे वो कुछ वार नहीं कर रहे. क्यों? इज इट अ नूरा कुश्ती बिटवीन यू एंड अरविंद केजरीवाल? नहीं, आई थिंक उसकी तरफ से इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, बिकॉज ही हैज़ नो आंसर्स. आप उस अरीना में लड़ेंगे ही नहीं ना. भाई अगर मैं क्रिकेटर हूं तो बेसबॉल खेलने थोड़ी पहुंच जाऊंगा, है ना. तो आप तो वही लड़ाई लड़ेंगे ना. जैसे होता है कि भाई जब स्पिनिंग विकेट होती है तो हम पेस बॉलर्स को नहीं लगाते, ज़्यादा स्पिनर्स लाते हैं टीम में. हर खेल का ही होता है. आई थिंक देखो इतना वो एस्ट्यूट तो है, वो जानता है. मैंने कितनी बार कहा यार कि आप या आपकी सीएम आए ना एक बार, कभी नहीं आएगा. बहुत से लोगों को उसने कहा है ग्रेट डिबेट दिस दैट, कभी वो कहेंगे सौरभ भारद्वाज, मैंने कहा ना, आप आओ ना. तो 8-10 मैंने तो ये कहा कि आप अपना एजेंडा तय करो, आप शुरू के 1 घंटे बोलो आपने क्या किया, जो आप बोलना चाहते हो, और मैं आप ही के कागज, आप ही के सरकार के दस्तावेज एक भी अपना नहीं यूज करूंगा. मैंने कितनी बार चैलेंज किया है, एक भी मैं गैर ऑफिशियल अगर कागज यूज करूं तो मैं उसी समय डिबेट से उठ जाऊंगा. पर ही नोज वेयर ही इज वीकेस्ट. वो जानता है इस गलती से अगर वो इस डिबेट में बैठ गया तो उसके बाद तो फिर मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, आई एम नॉट सेइंग इट विथ एनी एरोगेंस, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, उसके बाद ये एज अ पॉलिटिशियन समबडी हु क्लेम्स कि उसने काम किया फिर नहीं उठ पाएगा. वोट पड़े नहीं पड़े वो अलग की राजनीति है. So in this constituency, how confident are you that he is now nervous? Because many journalists are saying कि ये 3-cornered fight में you could eat up his votes, he could eat up your votes, and it will be the BJP which will succeed. देखो पहली चीज़ तो इसमें हाँ ये तो है कि हमारे वोट उसको जा सकते हैं, उनके वोट हमारे पास आ सकते हैं. पर अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी का चरित्र देखें तो इसमें बहुत सा हमारा और बीजेपी के बीच का भी साझा वोट है. देखिए सरकारी अधिकारी हैं बहुत से, जो ज़रूरी नहीं है कि केजरीवाल से बहुत खुश हैं. कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और वो ये नहीं है क्योंकि इस समय वो नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को, इस सब को नहीं देख रहे हैं. वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. वो देख रहे हैं यार मेरी, उनके लिए भी तो मेरी दिल्ली है ना, जिस दिल्ली में वो रहते हैं. मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ एयर पोल्यूशन की अगर बात करते हैं, अगर वहाँ काम नहीं हो रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो सीधे सीधे इस पे सवाल उठा रहे हैं. और उनको ये लग रहा है कि शायद दिल्ली के लिए उनको एज ऑफ टुडे बीजेपी उतनी अच्छी विकल्प नहीं दिख रही. आम आदमी पार्टी शायद उनकी लास्ट चॉइस है. तो मेरे पास बीजेपी का भी वोटर आता है, दिख रहा है मुझे. आएगा नहीं आएगा क्या किसका होता वो तो पता चल जाएगा 8 तारीख को. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ या कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी का वोटर लेगी. अरविंद केजरीवाल को मुझे जो दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है उसकी तरफ से, एक उसने कुछ नहीं किया 10 साल में. मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उसका काम नहीं हुआ. और दिल्ली में तो वो जो भी बखार ले, अपने 10 के 200 बोले, 5 को 1000 दिखाए, वो अलग दिखाए, वो अलग है. वो कहाँ आंकड़ों में भी वो बिल्कुल पीछे दिखते हैं. लेकिन यहाँ तक जो बात यह है, यहाँ का जो वोटर है उसको एज ए विधायक बिल्कुल माने तो निकम्मा विधायक दिखता है. आते भी नहीं थे, काम भी नहीं होता था. और मैं इसलिए बताता हूँ स्मिता जी, देखो ये एनडीएमसी एरिया है, कोई खास काम नहीं है यहाँ कोई बड़ी तोप जैसी चीजें नहीं करनी, छोटी. हाँ. और देखो सिर्फ ये है कि भाई 2 इंच की पाइपलाइन है सुएज की, 4 इंच की हो जानी चाहिए थी.
पाइपलाइन डली थी शीला जी के समय, यार उसमें थोड़ा सा अब पानी नहीं आ रहा है, बूस्टर्स लगवा दीजिए, कुछ और इंतजाम करा दीजिए। जहां खड़ंजे पुराने लगे थे वहां 2-2, 3-3, 4-4 साल में रिप्लेस होने उतने कम से कम करा देते। आपने झुग्गी वालों को जहां से एक आध तो मैं बाद में आपको ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप कहेंगे सच्ची में ये क्या हुआ। सरकारी बिल्डिंगें जहां आज आप 2-2 मंजिल चढ़ो तो रेलिंग तक नहीं है, टूट गए हैं। अरे यार एनडीएमसी लगवा देते, एमएलए लैड से लगवा देते, कहीं से पैसे से लगवा देते। कई कई जगहों पे हमारे जो छोटे छोटे चौराहे थे उसमें इंप्रूवमेंट हो जाते। पार्कों में 12, 13, 15 साल पहले काम हुआ था, रेलिंग्स डले थे, उसमें आज कोई नया काम नहीं हुआ है। तो उनको लगता है यार हमारा किया क्या तुमने 10 साल में। तो एज ए एमएलए तो वो कोई बहुत भारी नहीं दिख रहा है। और उसके ऊपर दिल्ली सरकार के 10 साल की भी एंटी इनकम्बेंसी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ रही है। मैं बाहर की नहीं बात करूंगा, मैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोकलाइज कर रहे हैं चुनाव को, आप प्रत्याशी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल एज एन एमएलए आप उसकी रिपोर्ट कार्ड, उनकी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जाके तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन एज अ होल दिल्ली आप कितना चांसेस है, क्योंकि 4% वोट जब आपको 2020 में मिल रहा है, 4% से भी कम मिल रहा है, आप उसको कैसे, और एक आप समय 40% हुआ करता था। 40%, तो आप कैसे ले जाएंगे? बीजेपी का 32%, 34% वोट उसका मेंटेन होता है, इंटैक्ट रहता है, और जब वो लोकसभा का चुनाव आता है तो वो बढ़ जाता है। आप लोगों के पास जीत की कुंजी कहाँ, कैसे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अंतिम वोट डालने जाएगा तो दिमाग में रखता है कि मेरा वोट जाया ना चला जाए, या आपको ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि वो आपको तो एमएलए बनाना चाहता है, मतलब संदीप दीक्षित को एमएलए बनाना चाहता है, ऐसी गट फीलिंग आपको आ रही है? सरकार भले ही दिल्ली में बन रही हो या नहीं बन रही हो। नहीं, देखो इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कभी भी हो जाते। 2013 में आम आदमी ने किया, आपको याद होगा एनटीआर जब थे कहीं नहीं थे, तेलुगु देशम पार्टी बनाई, और अचानक अगर आप कभी कभी एक बड़ी फीलिंग को पकड़ लो तो फिर पार्टी कहीं से भी कहीं जा सकती है ना। और हम लोग अनजान पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन पिछले अगर 2-4-5 साल में आप देखें जिस तरीके से घर घर में शीला जी की बात होने लगी है, कांग्रेस भी लोगों के दिमाग में तो है। सो वी आर नॉट मेंटली डेड, हम लोगों के मेमोरी में है। मेमोरी से हाथ पे आकर बटन दबाने वाली जो शक्ति है उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। मेमोरी इज अबाउट अ पर्सन। I understand. Do you get that? Yeah, I understand. You are still fighting an election, like he was saying. You're still fighting an election with the memory of a person, not of the party. आपके अलावा संदीप जी, I don't know whether I'm sorry if you take this as otherwise, but आपके अलावा कौन है पार्टी में जो यहाँ कैंपेन कर रहा है? कौन है? कोई जानता नहीं है, कोई शक्ल नहीं दिखाई दे रही. I mean, it's only Sandeep Dikshit and maybe initially it was Ajay Makan. That's it. मतलब इतना फीका, it's like नींबू पानी without नमक और चीनी. और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है मैम कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें फेस डिक्लेयर किया ना कि ही इज द ओनली फेस फ्रॉम कांग्रेस साइड। ओके अटैक फ्रॉम बोथ ऑफ अस। नहीं, बाहर भी अटैक पड़ेगा जब मैं पार्टी में जाऊँ। नहीं, मैं मानता हूँ आपकी जितनी बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम द ओनली फेस, बट हाँ पार्टी का उस तरीके से नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो जो पॉसिबिलिटी कि क्या हम 4 से 30, 32, 35, 40 तक जा सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं और मुझे लगता है इसलिए उसकी कुछ बीज हैं। होता नहीं होता है वो बाद में देखेंगे। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एक और बात है, हम एक्चुअली में 4-5% पे नहीं है। हमारा बहुत सा ऐसा वोटर है जो प्राइमरली एंटी बीजेपी वोट है, उसको 10% और मान लीजिए, 12% और मान लीजिए, जो आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता है, लेकिन क्योंकि हम कहीं नहीं हैं बीजेपी को हराने के लिए इस समय आम आदमी के पास बैठा हुआ है। मैं बहुत से ऐसे वोटरों को जानता हूं और मुझे लगता है कि अगर उसको लगेगा कि कांग्रेस सीरियस है तो 10, 11, 12% वो एक लॉट, आप इस नंबर को 8% मानो, 12 मानो, 0 मानो, आई एम नॉट सेइंग, मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं। वो जैसे ही हमारे पास लौटेगा हम ऑटोमेटिकली 15-16% पे पहुंच जाते हैं। ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं जमानत बचने वाली स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से 3-4% हमारा वोट है, 5% वोट है जो बीजेपी में है, जिसको शीला जी की डेवलपमेंट या कांग्रेस थोड़ी बहुत पसंद थी, बट आप बिल्कुल नहीं पसंद थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे एक तरीके से डिसलाइक करते हैं। Okay. और वो बीजेपी उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, लेकिन इस समय ओनली चॉइस है, बिकॉज हम थे नहीं। जैसे यहाँ बीजेपी फर्स्ट चॉइस, आम आदमी फर्स्ट चॉइस नहीं है, लेकिन ओनली चॉइस है। ये दोनों अगर हमारे पास हम ला पाए तो मुझे लगता है हम आराम से 18-19% पे या 20% मान लो, आप 16 मानो, 20 मानो, 21 मानो, ये तो अटकलें हैं, हम खड़े हैं। इस पर हम अगर मेहनत करते हैं, मुझे लग रहा है कि हम कुछ तो मेहनत कर ही रहे हैं। मेहनत अगर हम करते हैं
हो सकता है थोड़ा लेट हो, आप कह सकते हो सकता है पूरी तरह से स्थिति ना हो, हमारे पास वो कार्यकर्ता, वो मंच उतना नहीं है जो 15 साल पहले था, लेकिन फिर नहीं भी है, neither मानता हूँ in comparison with आम आदमी और पार्टी बीजेपी, और पर the फिर भी मैं BJP. मानता हूँ, मैं फिर भी लेकिन कहता हूँ, अगर उस फीलिंग को हमने पकड़ लिया, कभी कभी a feeling is far greater So even if, okay, than its granted, the physical suppose there's force. an anti-incumbency feeling जो आप कह रहे हैं, अगर feeling जो बहुत से जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि there is an anti-incumbency, लोग आम आदमी पार्टी के लिए एक विकल्प ढूंढना चाहते हैं and the विकल्प need not necessarily be the BJP. Now, yesterday, Rahul Gandhi was supposed to campaign. आप देख रहे थे 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, राहुल गांधी का नामो निशान नहीं. फिर वो जाते हैं सीलमपुर, ही इज डिसाइडेड कि सीलमपुर से कैंपेन करेंगे. There he talks about the constitution. Now, is that your vote bank, the Muslim vote, which has tradition? अब अगर मैं traditionally बोलूँ कि पिछले 10 साल से traditionally gone to the आम आदमी पार्टी, वहाँ पे जय भीम का मीम का स्लोगन रेज होता है. That means if you see approximately about 30% of the electorate in Delhi is about the non-creamy layer class and the Muslim. ठीक है. Are you aiming for that vote? Is that your vote bank? that is the DM factor. Dalit Muslim. Dalit I Muslim. will say it. Dalit Muslim. नहीं, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कुछ एरियाज में है, और वो उस वोट का हिस्सा है जो आम आदमी पार्टी हमसे खींच के ले गई थी. देखो, हमारा बहुत सा वोटर, आपने देखा होगा जब हमको 24, 25, 26% वोट पड़ा था 2013 में, तब हम इस हालत में नहीं थे. तो उस समय काफ़ी दलित और काफ़ी माइनॉरिटी वोटर कांग्रेस के साथ रहा था. वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ था करप्शन, एंटी करप्शन से. हमारा, और आपको याद होगा सबके पास एनालिसिस कौन सा वोटर, चांदनी चौक जीते थे, हाँ, बल्लीवरान जीते, कुछ ऐसे एरिया जीते थे, सीलमपुर आप जीते थे, तो सुल्तानपुर आप एक जीते तो ये थे. कि वो हमारा ऐसा वोटर है जो उसके बाद चला गया. जो मैं आपसे कह रहा था, ये वो वोटर है जो ज़्यादा आसानी से हमारे पास लौट पाएगा. जैसे मैं अभी एक किसी और से डिस्कस कर रहा था कि जैसे अगर आप कोई पेपर देने जाएं और मल्टीपल आंसर्स होंगे, तो पहले आप अपने सबसे आसान आंसर कर लेते हो, उसके बाद फिर आप टफर सवालों पे जाते हो. तो हमारा ये कि हम उसको पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और उसके बाद जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर है, जो जनरल कम्युनिटी से, या जो भी उसका नाम ले लीजिए, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम है नहीं, हर आदमी अपने तरीके से करता है, उनको अट्रैक्ट करिए. लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊंगा स्मिता जी, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ कोई उतना सब्सटैंटिव नहीं है. ठीक है. प्लस दिल्ली का भी, सिद्धार्थ जी तो जानते होंगे, दिल्ली में भी जो जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट या दलित वोटर है, या अलग अलग एरिया का माइनॉरिटी वोटर है, वो भी रीजनल, भले दिल्ली छोटा शहर है, छोटा राज्य है, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत अलग है. सिटी का जैसे माइनॉरिटी है, टू हम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वेस्ट दिल्ली का दलित जो है, टू साउथ दिल्ली का दलित, सेंट्रल दिल्ली का जो शेड्यूल कास्ट है, टू ईस्ट दिल्ली का, इनमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं. ये एक तरीके से नहीं आगे बढ़ के वोट करता मेट्रो है. की वजह से. हाँ, मेनी पीपल में भी सरप्राइज्ड कि यार जरा सा शहर है, इतनी क्या वेरिएंसेस है, वो एक्चुअली में हैं. गेट दैट कि पूर्वांचल का जो वोटर है वो अलग तरीके से वोट करेगा. ऑल दैट आई गेट. I just want to add on to this. But there are 70 असेंबली सेगमेंट्स. संदीप सर थोड़ा एलेबरेट और थोड़ा सा शायद उस चीज़ से, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी कहीं पार्टी की हो सकती है, 70 असेंबली में से 12 असेंबली जो है शेड्यूल कास्ट रिजर्व्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 8 आर माइनॉरिटी डोमिनेटिंग. तो सिंस 1993 टिल 2025 बीजेपी इज कंटेस्टिंग ऑन 50 सीट्स. 50 में से उन्हें 36 चाहिए अगर उन्हें जीतना है, क्योंकि इन 12 दलित सीटों में, 12 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 10 हमेशा कांग्रेस के पास 98 से 2013 तक रही हैं. 2013 तक 13 के इलेक्शन में अलग अलग चीज़ें हो गई, और जो 8 माइनॉरिटी डोमिनेटिंग थी. अब माइनॉरिटी में भी जो जैसा सर बता रहे हैं, 2 चीज़ें हैं. एक माइनॉरिटीज़ जो जमुना पार की माइनॉरिटी, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली की माइनॉरिटी वोटर्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी चांदनी चौक माइनॉरिटी वोटर्स. और वहाँ आफ्टर द रॉयट्स, वहाँ पे एक सेंटिमेंट अगेंस्ट आम आदमी पार्टी है. दैट इज़ व्हाट कांग्रेस पार्टी इज आइंग ऑन इट. लास्ट असेंबली लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस ने एक ही रिजर्व सीट थी दिल्ली में जो नॉर्थ वेस्ट की थी, वो ली इसलिए कि वही दलित मुस्लिम वोटर वापस आ जाएगा, तो एटलीस्ट 20 में से जितने नंबर्स आते हैं वहाँ से खाता शुरू हो. क्योंकि 2015-20 दोनों सर आपका जो है गड़बड़ रहा. तो आपको ये जो मैम पूछना चाह रही हूँ यही कि क्या वो डीएम फैक्टर ही है आपके लिए जो कहीं शुरुआत कर सकता है. आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग सिनेरियो है, लेकिन जो 12 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं,
और 8 माइनॉरिटी डोमिनेटिंग है। पिछली बारी भी 2013 में आखिरी जो 8 नंबर आए थे वो भी आपके उन्हीं लोगों ने बचाए थे। तो नहीं। आपको लगता है वही दिस इज द ओनली की टू गेट बैक इनटू द रेस? नहीं, दिस इज द की टू। देखो क्या हो रहा है अभी, जैसे मैं आपको बताता हूँ स्मिता जी, मेरे यहाँ भी जैसे कुछ जगहों पे ये आवाज़ शुरू में आई थी जब मैं एकदम आया था। अब मेरी उम्मीद ये है कि कहानी काफ़ी पलटी है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। यार हम तो देना चाहते हैं आपको, लेकिन सरकार तो आम आदमी बना रही है। ये एक था। तो हमारा ये कि सबसे पहले हमें वो धारणा छोड़नी है कि यार मैं चाह तो रहा हूँ आपको, लेकिन आप हो ही नहीं। तो उसके लिए जैसे कई स्टेट्स में कहा जाता है कि यार आप एक कम्युनिटी पकड़ लो या एक ग्रुप पकड़ लो, एक रीजन पकड़ लो, हम तो आना चाहते हैं। अगर दिखेगा कि आप ताकत हो तो फिर एक के बाद एक फिर वो एक कारवां बनता चला जाएगा। तो कारवां बनाने के लिए एक होता है पहला एक किसी को पकड़ना, और मुझे लगता है कि उसकी भी रणनीति हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की भी आप लोग नई दिल्ली में जैसे हमने देखा कि सरकारी अधिकारी और ये लोग, और उसके साथ क्योंकि मैं भी सरकारी अधिकारी फैमिली से हूँ, थोड़ा सा रिलेट भी आदमी ज़्यादा आसानी से करता है, अपनों से करता है ज़्यादा। तो मुझे लगा उनके बीच में जब मैं जा रहा था, उनकी भाषा मुझे समझ में आ रही थी, मैं उनकी भाषा बोल रहा था, तो मैंने शुरुआती कैंपेन्स वहाँ ज़्यादा किए। तो जब उनमें एक बातचीत आने लगी, तो अब शायद जैसे पहले था कि जब रिपोर्टर, मैं तो आप लोगों से जो पता चलता वो करता है, पहले ये था कि भाई हाँ अच्छा है ये धूल उड़ाएंगे, लेकिन चुनाव बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी के बीच में। अब कम से कम कह ले नहीं त्रिकोणीय है, भले मैं कोई कहता मैं 3 हूँ, कोई कहता मैं 1 हूँ, वो अलग छोड़ दीजिए। लेकिन अब ये मानते हैं कि भाई मेरा सिर्फ वहाँ धूल उड़ाने के अलावा 2-4 इमारतें भी बन गई हैं मेरी उसी धूल से। तो लगता है कि कभी कभी वो जो धूल उड़ानी पड़ती है उसके अंदर में आपको कुछ सब्सटेंटिव पकड़ना पड़ता। तो आज जैसे 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि साहब पहले जब हमारे जाते थे इन्वेस्टिगेटर्स तो कहते थे नो वेरी गुड बट ही इज नॉट गेटिंग वोट्स। नाउ ये कि नो ही इज गेटिंग वोट्स, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई वोट तो मिल रहा है। वो आई थिंक दैट जो स्ट्रैटेजी है ना, आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली चुनाव तो रणनीति से लड़ा जाता है। चुनाव में कोई ग्रेट मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, बट यू आल्सो हैव टू फाइट ऑन द ग्राउंड। सी वन इज कन्विंसिंग द वोटर्स, वो तो आपका धर्म है, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपके अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो जब कन्विंस नहीं हुए कांग्रेस को लेकर, they are not, Mamata Banerjee is supporting Arvind Kejriwal, Akhilesh Yadav is supporting Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray says that he might come and campaign for, or at least his people are saying, तो जब वो लोग सब कह रहे हैं, who's coming to support you? स्मिता जी, can I take a contrary argument here? Okay. मुझे लग रहा है कि they are convinced that Congress is doing well, that is why they are worried. मुझे ये लगता है कि देखो इंडिया अलायंस हुआ, वो तो लोकसभा में हुआ, सब लोग चाहते थे कि मोदी जी नहीं बने, दैट ठीक है, हर लेवल पर एक ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिटिकल गोल होता है। इनके राज्यों में इनको सबसे ज्यादा, अगर बीजेपी छोड़ दीजिए तो इनकी प्रतिस्पर्धा किससे है? कांग्रेस से। तृणमूल में भी अगर हम 2% भी बढ़े, 5% भी बढ़े, तो हो सकता है तृणमूल डैमेज हो। समाजवादी के अगर हम बढ़े तो या तो हम नेगोशिएशन जब करेंगे, अगर हमारा अलायंस होता है स्टेट में, तो हम ज़्यादा सीटें लेंगे या हम इनको दिक्कत करेंगे। पर है ना, मिल्कीपुर में तो अलायंस के साथ ही लड़ रहे हैं। हाँ, अभी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आगे की। इससे पहले भी सपोर्ट किया था। आगे की, क्योंकि बहुत सा देखिए जब डिवीजन होता है सीट्स का तो माहौल का भी असर होता है। कोई ऐसा तो है नहीं 2 + 2 is never 5 इन पॉलिटिक्स, इट कुड बी 10, इट कुड बी 0 ऑल्सो। तो उनको ये लगता है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, ठीक है, तो नेगोशिएटिंग टेबल पे, और मॉरल जो फोर्स होती है नेगोशिएटिंग टेबल की आप भी जानते हैं, एक नंबर की पावर होती है, एक मॉरल पावर होती है। वो मॉरल पावर कांग्रेस के हाथ में कहीं ना चली जाए। तो आई गेट अ फीलिंग कि अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए और अपने अपने राज्यों में अपनी साख को हमसे ऊपर रखने के लिए उनको लगता है कि कांग्रेस अगर दिल्ली में कमजोर रहे, क्योंकि आम आदमी से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आम आदमी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, पर कहाँ है बंगाल में, लड़ती तो है नहीं, कहाँ है महाराष्ट्र में, लड़ती तो है नहीं। तो उससे तो वो खुश हैं और कहते हैं कि ठीक है हम लोग आपस में निपट लेंगे जब जरूरत होगी। तो मेरा ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी जो बात है वो भी एक सिनेरियो है, लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है, और इसीलिए जब इन पार्टियों ने उनके साथ समर्थन देना शुरू किया तो मुझे कहीं भी आश्चर्य नहीं हुआ। आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड एट ऑल। Tell me about that thing with Ajay Makan had called Arvind Kejriwal as anti-national.
You were supposed to do a press conference, or your party was supposed to do No, a press he was conference. supposed to. He was supposed He to was do a supposed- press- So मैं तो वो- करता रहता हूँ थोड़े It थोड़े. was an officially declared press Press conference. conference जो- All of the reporters were there, and it was held up for 2 hours. और फिर and वो then हुआ नहीं. finally called off. And not just the press conference. उसके बाद अजय माकन जी दिखे ही नहीं. कल रैली में भी नहीं थे. हाँ. कल importantly, he was not present in the rally. So what is happening? This, I don't know. Smita ji, देखो, Ajay ji had some differences with Sheila ji, whatever it was, must have been at Yeah. some point of time. I've always had a warm relationship with him. और कभी हम लोग मिलते भी रहे हैं. और मुझे इतना मालूम है अजय जी के बारे में कि अगर वो कोई की क्लेम करेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता होगा. वो बिल्कुल हवा में नहीं बोलते. तो जब उन्होंने एंटी नेशनल शुरू में कहा था, तो इन लोगों से पूछो, मैंने भी कहा था कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बट ही रिपीटेड दैट. तो कुछ तो उनके पास होगा अपनी बात को The करने only के लिए. thing that people Why was that press conference cancelled? हाँ. Personally speaking, I'm perplexed, and I think अगर उसको वो करें या उसके पास कोई भी मसौदा हो, I think it will be good. अच्छा रहेगा कि वो क्योंकि करें. ये पहले भी अरविंद केजरीवाल के बारे में ये एंटी नेशनल टैग लगा था जब वो खालिस्तानी जी, जी. उनके घर में रुके थे. रुके थे. उस टाइम During बीजेपी ने Punjab कहा Force. था. बट उसके बाद बीजेपी वो 16 या 17 का जो चुनाव था. हाँ. उसके बाद बीजेपी स्टॉप्ड कॉलिंग हिम एंटी नेशनल. तो दिस वाज अगेन अनदर एलिमेंट, वही पुराना वाला एलिमेंट वो इस बार भी उठा और उसके बाद वो सबसाइड हो गया. तो वाज इट प्रेशर बाय अदर इंडिया अलायंस पार्टनर्स? I can't say. I really can't say. I don't think Ajay ji would be forced by that. But as I said, let me not speculate on behalf of him. ये क्यों नहीं दिख रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपके बड़े लीडर नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी आज रोहिणी तक चले जाते हैं, लेकिन नई दिल्ली के तो वोटर हैं. अभी वो आपके यहाँ कब आएंगे, कब पहुँचेंगे? बड़े लीडर्स जो हैं आपके यहाँ, या ये मान रहे हैं कि आप वहाँ बैठे हैं तो ये इनफ है? नहीं. देखो, दिस इज नॉट फेयर. देखो क्या है, आप जानते हैं कांग्रेस में ये भी प्रथा होती है कि हमें मांगना है वोटर्स को. ओके. और मैं आपको खासकर नई दिल्ली की स्थिति बता दूं, दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से हमारा यहाँ कोई स्थायी नेता नहीं रहा है लोकल लेवल पे. तो थोड़ा सा पार्टी जैसे बाकी 70 सीटों में है, 69 सीटों में यहाँ शायद ज़्यादा थोड़ी सी बिखर गई थी. कार्यकर्ता हमारा था तो उसको तो बटोरने में हमको टाइम लगा. ओके. फिर और जगहों पे एमसीडी के कैंडिडेट्स होते हैं, तो कुछ भी हो, एमएलए हो या नहीं हो, 4 लोग हर वार्ड में ऐसे हैं जिनको लगता है कि कांग्रेस से उसको एमसीडी का टिकट मिलेगा, तो वो कार्यकर्ताओं को जोड़ के रहता है, आना जाना रहता है, सुख दुख में साथ रहता है, तो पार्टी जुड़ी रहती है. नई दिल्ली बिंग एनडीएमसी एरिया, हमारे पास वो भी नहीं था कि हम लोगों को जोड़ पाएँ. तो अभी हमें पहले तो 8, 10, 12 दिन थोड़ा सा सजोने में लगे. अच्छी बात है कि सब थे वहाँ. कुछ बहुत से लोग पुरानी डायरियों में मिले, नाम से मिले, मैं जाने लगा तो पहचानने लगे. शीला जी की स्मृति से वापस आ गए. मैंने 98 में 2003 में शीला जी की मदद की थी, कई लोग मुझे मिल गए. तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने थोड़ी देरी की है और अब हम इस स्थिति में हैं कि नई दिल्ली में न्योता दें. पर देखो एक और चीज़ है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, नई दिल्ली वो नहीं है कि आप बड़ी मीटिंग्स कर सको. ये 5-7 हज़ार 10 हज़ार की मीटिंग वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं. हमारा भाई देखो 61% वोटर तो सरकारी अधिकारी है, वो कहाँ मीटिंग में, इतनी बड़ी मीटिंग में जाता है. आप स्थानीय मीटिंग कर दोगे जिसको आप लोग नुक्कड़ सभा कहते हो, उसमें RWA के कोई 25-50 आ भी जाएं, 100 मैक्सिमम आ जाएं, इससे बड़ी हमारे यहाँ मीटिंग नहीं होती है. पर सर राहुल जी तो आज जहाँ रिठाला गए हैं, हाँ. उस रिठाला के अंदर छोटा सा क्लस्टर है जहाँ पर वो गए, वहाँ तक जा सकते हैं. तो आपके यहाँ तो उन्हें आना चाहिए. नहीं, देखिए एक और है, छोटी कॉलोनियां भी तो है, बीके दत्त कॉलोनी वगैरह जो छोटी है. नहीं, बट सिद्धार्थ जी, दिल्ली में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रेजोनेट करती हैं. अगर आप एक क्लस्टर में जाके क्लस्टर के रिलेटेड बात करोगे तो वो हर दिल्ली के कोने में खबर जाती है. अगर आप किसी मार्केट में दुकानदारों के साथ बात करोगे तो दिल्ली के हर मार्केट में उसका मैसेज आपकी जो न्याय यात्रा हुई थी उसमें भी नहीं आए थे कोई भी, ना राहुल गांधी आए, ना खरगे जी आए, ना प्रियंका आई, कोई भी नहीं था. क्यों? व्हाई उसमें स्टार्स आर मिसिंग? आप ही थे चल रहे थे. एक जगह तो ऐसा है जहाँ पे स्थानीय सांसद नहीं थे, जेपी अग्रवाल वहाँ नहीं दिखे, पूरे चांदनी चौक के एरिया से निकले. तो अभी भी वो यूनिटी फ्रिक्शन है क्या अभी भी आप लोगों क्या? नहीं, शायद फ्रिक्शन नहीं है, शायद मुझे लगता है कुछ सीनियर लीडर्स सेल्फ रिटायरमेंट मोड में हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ, ये हो सकता है. और इस शहर में तो इतने दिग्गज नेता हैं आपके जो बैठे हुए हैं यहाँ पे. ये स्मिता जी, पर मैं एक और बात बताऊँ. देखो, जब आप इतनी बुरी हालत में होते हैं तो शायद अंदर में जज्बा तो हो, शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता है. मेरी थोड़ी सी दूसरी मोटिवेशन भी है. एक
एक Have you reached out? क्या आपने किसी को फोन किया कि आ जाओ मेरे लिए कैंपेन करो? मैंने हाँ दिल्ली में तो किया है। काफ़ी लोग जो शीला जी से जुड़े हुए थे, जो मुझसे जुड़े हुए थे, आप सिद्धार्थ जी से भी पूछो, इनको भी देखेंगे कई जगहों पे पुराने एक्सएमएलएस कई आए हैं, वो तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ में आ रहे हैं। मैम तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा को नहीं बुलाया है, क्योंकि वो अपने एरिया में भी काम करेंगे। मेरे घर के इर्द गिर्द तो सारे वकील रहते हैं जी। और वो सारे वकील they got a lot of largesse because of शीला जी being चीफ मिनिस्टर। एक बंदा नहीं कैंपेन कर रहा आपकी पार्टी के लिए, मैं सिर्फ अपने इलाके के बारे में कह रही हूँ। एंड नाउ सम ऑफ देम हैव गॉन टू अदर पार्टीज, कोई राज्यसभा में चले गए। कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आरंट दे कमिंग एंड कैंपेनिंग फॉर यू? नहीं, ये है, आई थिंक ये इशू है, उनको तो हमें सी वो जैसे कि वो बटोरना पड़ेगा सीनियर लेवल पे। मुझे लगता है कि तो रहते हैं बटोरने में कितने लग सकता है। दिल्ली में मैसेजिंग we seem to be attacking you, नहीं, but नहीं, 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 स्मिता जी, बात it's वो नहीं है। not an attack, if you know what I mean। वहाँ पे no. मेरे comment section में आ जाएगा you're attacking नहीं, the only decent person who has come from the Congress no, party on your thanking you for show। saying I'm the only decent person। No, that's not। देखो, मेरा इसी जो आप कई सवाल उठा रहे हैं, ये वो हैं जो वोटर के दिमाग में भी रहते हैं। हमारे अपने रीजंस हो सकते हैं, कुछ पार्टी के रीजंस हो सकते हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, बिकॉज कभी कभी होता है, यू मे हैव ग्रेट रीजंस, बट इफ पीपल डोंट नो द रीजन, जैसे 1230 में वी लॉस्ट द बैटल ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल थॉट कांग्रेस वाज डिसऑनेस्ट, पीपल थॉट दैट दिस इज नॉट द शीला दीक्षित वी न्यू और वोटेड फॉर। Time proved her to be probably as honest as anybody else could be. I don't think time has proven her otherwise at all. She's come out, शायद ही कोई ऐसा सीएम होगा हिंदुस्तान में जो अपने 10 साल के जाने के बाद भी इतना याद आता हो किसी Correct, को। yes. So time has put a kind of a tilak on her forehead. Even if she's my mother, I think I can say that, and I can say that with a lot of pride as a citizen of Delhi. पर मुझे लगता है कि ये सवाल जब लोगों के दिल में हैं, तो उन सवाल को अपफ्रंट होकर एज ए पॉलिटिशियन यू मस्ट आंसर देम। बिकॉज अगर डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में, पता नहीं चलता है कौन से डाउट से कौन सा वोटर फिसल जाए और कौन से क्लेम से कौन सा वोटर आपके पास आ जाए। तो ये तो एक जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है कि वी मस्ट कम अप फ्रंट एंड आंसर ऑल द क्वेरीज रेज्ड अगेंस्ट। दूसरा, उस जवाब को सही माने कि नहीं माने, पर इतना तो मानेगा कि हमारे पास जवाब हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी मस्ट स्टैंड अप and answer all these questions. There must be genuine reasons. I'm sure party wants to even much more than me, and I know much more than me want to win Delhi. So I think sometimes Do some they? of our, That's what I- yes. It doesn't seem like your party is making the effort. This is what everybody is saying. You minus. Your party doesn't seem to be making the effort. Whereas, why are journalists so irritated? Which comes out like anger. It is not anger. It is just that your party had the maximum organization at the ground level, other than the RSS. Right. The BJP depends on the RSS for their organizational ability, for their ability to go from door to door to do it. The only party which had that pan India was the Congress. ठीक है, वो छोड़ दिया, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, पर उसको रिवाइव करना मुश्किल नहीं है। नहीं, But then comes this third party जो 12 साल में has more ground presence than a party which has been here for 75 years. Why? यहाँ तो वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स वेरी वेरी क्लियरली। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी लॉस्ट द प्लॉट एंड वी न्यू व्हाट वी वर लूजिंग। हम अपनी कनेक्टिविटी भूल गए। और सबसे बड़ी बात देखिए, 2000 की जो ये क्या है, 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी इज ऑल्सो, जैसे कहते हैं ना, एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्या IT रेवोल्यूशन जो भी है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मुझे गुड वर्ड टू यूज़। जब बड़ी कोई ऐसी क्रांति आती है तो कम्युनिकेशन, उसके शब्द, उसके तौर तरीके, लोगों से कम्युनिकेट करने के इडियम सब बदलते हैं। ठीक है, वहाँ आप पुरानों में नहीं फंसे रह सकते। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे और नई भाषा नहीं पकड़ेंगे, अपने आप को उस टेक्नोलॉजी को, मैं कोई मशीन की बात नहीं कर रहा, एक समाज की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके प्रति वफादार और अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, एंड कीप योर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, यू हैव टू बी वोटेड आउट। सी रिमेंबर जब एस्ट्रोटर्फ आया था, हम लोग हिंदुस्तान में घास पे खेलते थे, हम लोग कहते थे घास पे खेलना इज ग्रेट हॉकी, रियल हॉकी, मेजर ध्यानचंद की हॉकी। पर दुनिया मेजर ध्यानचंद की हॉकी नहीं खेल रही थी। डिड नॉट मीन दैट मेजर ध्यानचंद वाज नॉट द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर एवर। फिर हमने एस्ट्रोटर्फ्स बनाए, हम बाहर से रेफरीज लेकर आए, हम खेलने लगे। आज हम कम से कम टॉप 5 में हैं, टॉप 5 से टॉप 1 जा सकते हैं। तो अगर हॉकी की तरह हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे। And there are many alliance partners of yours
who think or who are hinting कि बदलाव का time आ गया है, which I found very strange of one of your alliance partners, Omar Abdullah. In the morning, he was praising Narendra Modi, who had gone there to open the tunnel, and he was praising him, and he was like used a lot of words which were, you know, very supportive of the Prime Minister. Of the Prime Minister, which of course his local political parties criticized him for that. Sham ko he writes this and he says, wishing Congress leader and Lok Sabha member Priyanka Gandhi a very happy birthday. May your leadership, abhi she's not yet a leader as yet, she's only been an MP from Wayanad for a couple of months only. May your leadership continue to inspire people across the country to believe that a future without the BJP government is not only a possibility, but it is inevitable. I mean, these are powerful words. Powerful words. Strong words. Right. Each word I can think about it. That is a country without a BJP government. Now, in the morning, he's been telling about this fantastic leadership which Narendra Modi is providing. By evening, he's talking about the BJP government, a country without the BJP government. Not just a possibility, but it's inevitable. And Priyanka Gandhi is going to be the face for it. Not Rahul Gandhi. ये इंडिया अलायंस को सिग्नल दे रहे थे या फिर जनरली प्रेज कर रहे थे, मुझे नहीं पता. बट व्हाट आर यू रीडिंग इन दिस अबाउट हाउ इंडिया अलायंस पार्टनर्स आर सीइंग द कांग्रेस इन द अलायंस? डू दे वांट Rahul Gandhi to step aside? I think this is what you say, a general thing. Of course, it's very, very powerful, and I'm surprised because Omar साहब पिछले कुछ 2-1 महीने से कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, और बीच बीच में कहते भी थे कि कांग्रेस इस तरीके से एक्ट करेगी तो बड़ा अजीब हो जाएगा. And he said wind up the alliance अगर नहीं है तो. कहा था. सेकंड फेज की वोटिंग के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी. राहुल गांधी को कहा था कि वो आए आके जम्मू में कैंपेन करें, कैंपेन नहीं कर रहे हैं. सेकंड फेज की वोटिंग वाले दिन था, ये कहा गई थी. और आप लोगों के साथ तो एक बड़ा एक तरीके से एक बड़ा खेल नहीं हो गया कि वहाँ जम्मू सब कुछ आपको दे दिया, कश्मीर पे सब उनका हो गया, एंड आप लोग तो रिवाइव नहीं हो पाए, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ. आई टेक योर पार्डन फॉर दैट. बट उमर जी ने सवेरे पीएम के बारे में जो कहा, अब मैं क्या शब्द कहे मैं नहीं जानता हूँ, पर एक स्वभाव रहा इस देश का और देश की अच्छी राजनीति का कि जब आप किसी सार्वजनिक सरकारी पटल पर होते हैं तो वहाँ की आप गरिमा मेंटेन करते हैं. जी. कुछ मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कई बार गुस्ताखी की है, कि मंचों पे आप जो गरिमा होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच में, वो मेंटेन करनी चाहिए. हाँ, ये बात है कि क्या आप बहुत ज़्यादा जाते हैं उस तरफ तो वो बैलेंस नहीं दिखाता, लेकिन उतनी एक गरिमा होनी चाहिए. अब तो ये भी होने लगा. पहले मुझे याद है कि इंदिरा जी भी जब कलकत्ता जाती थी तो बहुत तलखी थी इनमें और सीपीएम में. ज्योति बाबू रिसीव करने आते थे. एयरपोर्ट गवर्नर आता था, भाई प्राइम मिनिस्टर आया है, कोई दुश्मन थोड़ी है, किसी भी पार्टी का हो, यू आर रिसीविंग द प्राइम मिनिस्टर. जाते थे, रिसीव करते थे. अब जो भी कारण है, पिछले 12-15 साल में कई लोग मानते हैं कि कुछ चीजों पे हम लोग को शायद वो नॉर्म्स नहीं रख रहे जो रखने चाहिए. People like Naveen Patnaik, all these people have maintained that norms जो पहले होते थे. And let's not say किसने किया, एक समय का होता है, समय की कुछ खराबियां होती हैं, तो उसको तो मैं, लेकिन हाँ ये है, जैसे आपने कहा ये टेलिंग तो है, ये क्या जैसे आपने कहा सामान्य है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा कुछ और होगा. बिकॉज वट एवर आई नो ऑफ ओमर साहब, ही मे हैव हिज पॉलिटिकल डिफरेंसेस. कांग्रेस को ये कुछ भी कहते हो, मुझे नहीं लगता ये ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई इस तरीके का दो व्यक्तियों के बीच में कोई खेल खेलेंगे, मुझे नहीं लगता है. But when we talk about the face of the Congress, till now the face of the Congress has been Rahul Gandhi. It still is. अभी भी है. So now these kind of statements, for example, let me come back to Delhi instead of, when we come back to Delhi, why is it that there is no face to the Congress party? Who is it? Why are you not able to stem? There's Arvind Singh Lovely who went, Rajkumar Chauhan, Prahlad Singh Sahni. These people have all left. Why are you not able to retain talent? Is it just because you've been out of power? Why is it that other than you, there's no face, nobody visible? ये मैं I think third time we are talking this in the show. There is nobody. आप मरवाओगे मुझे. There is nobody. नहीं, देखो कौन जाता है कौन नहीं जाता, वो मेरे को एक लगता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं यार चले गए. मुझे हमेशा दुख होता है जब अपने छोड़ के जाते हैं. हम लोग एक टीवी में गए हुए थे तो वहाँ राजकुमार जी बैठे हुए थे
और मैं पर्सनली बताऊं, राजकुमार चौहान जी बैठे थे, जब मैं घुसा कमरे में, वो बीजेपी का पटका पहने थे, 1 मिनट को मुझे बुरा लगा। आई हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल अफेक्शन, सबके साथ होती है, ये नहीं है कि तुम किसी दूसरी पार्टी में चले जाओ तो कोई व्यक्तिगत अफेक्शन कम ज़्यादा हो जाएगी, वो बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि अपना जब भी कोई छोड़ के जाता है, आई डोंट थिंक वी शुड बी एज कैजुअल अबाउट इट एज पॉसिबल। लेकिन अगर आदमी व्यवसायी केवल ढूंढ रहा है पॉलिटिक्स में, तो लोग जाते हैं, और व्यवसायिक नेताओं को आप रोक नहीं सकते। भाई व्यवसाय है, मुझे एमपी बनना है, सॉरी जैसे स्मिता जी, आपने मुझे एम्प्लॉय किया, कल को किसी और चैनल ने मुझसे कह दिया ज़्यादा पैसा में निकल गया, तो आप तो प्रोफेशन में हो, करेक्ट, आप तो व्यवसाय में हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई कोई यहाँ आके बड़ा ऑनेस्टली लिखता था और यार वहाँ जाके बिकाऊ हो गया, तो आप कहोगे यार ये कैसे बदलाव आ गया तुम में। So that is something that you don't like very much, you know. I don't want to compare journalists with politicians, but फिर भी I get it. तो एक वो तो दूसरा जो हमारे यहाँ ये कि क्यों हम लोग नाम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि हम लोग अभी उस स्थिति पर नहीं है कि हमारा कोई 1 या 2 ऐसे चेहरे हों जो पूरी दिल्ली में असर कर सकें। 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 70 चेहरे हैं, मतलब शीला जी थी, एक तरीके से बांध लेती थी। पर आपको याद होगा 98 में जब वो पीसीसी प्रेसिडेंट थी और वो लड़ी थी, प्रोमिनेंट फेस था, दिल्ली से बाहर से आई थी, दिल्ली वाले इतना नहीं जानते थे, उनका नाम एज अ सीएम नहीं डिक्लेयर हुआ था। हाँ। ठीक है, उसके बाद 3 में नहीं हुआ, 8 में नहीं हुआ, लेकिन वो लगता था कि भाई यही बनेंगे। जैसे हरियाणा में हुडा जी का था कि भाई जीतेंगे तो यही बनेंगे। तो कभी कभी Are you the face? Are you the CM? कभी कभी फेस नहीं डिक्लेयर करना भी एक फायदा करता है। वो तो बीजेपी सेज द सेम थिंग कि हाँ, हम फेस नहीं कभी डिक्लेयर। कभी बट आपके बारात में दूल्हा कौन है? आप नहीं है? नहीं, मैं यहाँ का दूल्हा हूँ। मतलब हमारे यहाँ 70 शादियाँ होनी है, सामूहिक विवाह है इस समय। पर आपका लिस्ट तो निकले नहीं सारे अभी तक। हाँ, वो आई थिंक आज निकल जाएंगे। दैट आई थिंक वो थोड़ा क्या है स्मिता जी, देखिए आई थिंक डॉक्टर साहब के, मनमोहन सिंह जी के जो डेथ से 7-8 दिन हमारे चले गए ना, वो थोड़ा सा हम लोगों को सेटबैक हुआ टाइम संदीप जी, इलेक्शन जीतने के लिए होता है। आई एज अ जर्नलिस्ट डोंट नीड टू टेल यू दैट, आई मीन यू एज अ पॉलिटिशियन शुड नो दैट। हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे यहाँ ये रीत रिवाज है, हमारे यहाँ ये यू नो दीज आर थिंग्स व्हिच साउंड प्रीवियस सेंचुरी, आई नो, not this century. What did I say some time back? You have not learned the idiom of this century. Some things we have not. I agree to that. Huh. I'm not saying that we are a perfect battling mechanism for today's time. Okay. All I'm saying is I hope we are learning. I think I've learned a lot. I mean, आपने देखा होगा मैं आजकल तो बीजेपी कहती है कि मैं सोशल मीडिया पे भी दिख जाता हूँ। पहले- इनसे पूछो पहले- what was my opinion of social media till about 2 years ago. But Sorry to say, I used to call it the new idiots box. I mean, with Yeah. due apologies to everybody. But lots of slightly people in old-fashioned, the huh? BJP used to say this, that you are the right man in the wrong party. What do you have to say to that? Well, thankfully they've called me the right man. नहीं, देखिए, anybody who says that, I respect them. But as I said, I'm in the right party. Okay, and I think every party gives everybody a time. I respect every party who wants me to come and go. But देखो, you are also in the field of politics. To fight for what you believe, you should be getting an opportunity to do. Okay, I think that's the greater fun of it. कभी मौका मिलेगा कर लेंगे, नहीं मौका मिलेगा, we'll think that the time is not right or people are not ready for what we would like to do for them. That's okay. In a conversation with ANI, which you've done, you had said Kejriwal has helped the BJP so much that it took them 10 years to see his reality. You also called him a dhongi in that. In what way did the BJP help Kejriwal? देखो, मैं आपको बताता हूँ, from almost about 5-6 years ago, I've been informing people through the LG's office. I mean, my contact with the BJP is primarily through the LG's office, and some people meet me. For example, जैसे अरुण जेटली जी की मैडम से पर्सनल मित्रता थी, और वो वाली नहीं है जो ये केजरीवाल कहता है कि मोहरे हैं ये वो. I don't think Kejriwal realizes that you can be colleagues and friends and yet be fierce political enemies. That was a standard of mature politicians. Not job seekers in politics. Okay, so I think lot of them I told them कि भाई देखिए ये हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग. कभी कभी बीजेपी के मुझे लोकल लीडर्स कहीं मिल जाते थे. देखो, जब मैं सांसद था तो सांसदी में बहुत सारे संबंध थे, कोई कॉर्पोरेटर था, कोई एमएलए था, मिलते थे हम लोग, बातचीत करते थे. एंड शीला जी का हैड, इफ यू रिमेंबर, शी हैड अ रेपुटेशन कि वो एमएलए के काम करती थी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो. तो वो तो सब मानते थे, तो आते थे असेंबली में कुछ भी कर लो, बाहर आके इट वॉज मोर लाइक अ कॉमन क्लब ऑफ 70 पीपल.
तो हम कहते थे उनसे यार ये हो रहा है या इस तरीके के घोटाले की खबर आ रही है, नहीं यार रहने दो, चलो ठीक है, अभी दिल्ली हमारी प्रायोरिटी। मतलब हमें ये मैसेज, ऊपर क्या सोचते होंगे क्या नहीं सोचते होंगे वो ऊपर वाले जाने, पर जैसे आप कह रहे हैं आपका ग्राउंड रिपोर्टर आपको क्या खबर दे रहा है, आपको लग रहा है वही हो रहा है एरिया में। तो हमारे लोग बताते थे कि इस तरह, और हम बार बार उनसे कहते थे कि क्यों इस तरीके की चीज़ें आप नहीं ले रहे हैं। जैसे ये शराब घोटाले के साथ साथ कुछ और 2-1-3 चीज़ें थी जब हमको खबर आई, क्योंकि स्मिता जी आपको याद होगा शीला जी का ब्यूरोक्रेसी से बहुत अच्छा संबंध था, वो रिस्पेक्ट करते थे। एंड केजरीवाल साहब ने बहुत बदतमीजियाँ की हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो ब्यूरोक्रेसी कभी ज़्यादा बोलती नहीं है, बट कभी कभी मिलते हैं तो हिंट करते हैं क्या है क्या नहीं है। और मैं जब बार बार बताता था कि यार इसको थोड़ा सा गंभीरता से लो यार, मतलब लूटपाट तो मत होने दो। फिर मैं कितना बार कहता था कि यह तो बिल्कुल फर्जी भरा हो रहा है, क्यों आप लोग अलाई कर रहे हो। तो मुझे लगता था कि उन लोगों को ये लगता था ठीक है हम जीत भी लेंगे दिल्ली तो क्या है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब मुझे लगता है उनका शायद एक ये होता है बेनेवलेंट वाला रॉन्ग रीडिंग ऑफ अ सिचुएशन। जैसे आप लोग कहते हो कि 11, 12, 13 में वी डिड नॉट रीड हिम प्रॉपरली। Maybe I'm only being, sympathetic to be partial. I'm giving them benefit of the doubt. Maybe they've done it deliberately. It's well within their right to weaken another party by supporting its principal opponent. That's also Not at the cost of the exchequer. Yeah, not at the cost of except पर मैं कह रहा हूँ otherwise it can be a legitimate political strategy. I'm talking only political strategies. Okay. तो मुझे लगा ये चीज़ें, जैसे आज इनके ऊपर 5-6 केस हैं. I know very very clearly of cases which actually should have been filed long time back. There are some things that people gave me. I don't want to put it here because it also almost sound like defamation. जब तक आपके पास adequate, but at least they were enough ground to instigate investigations. To get people to investigate करिए ना. तो ढोंगी क्यों आप ढोंग का किस चीज के बारे में ढोंग तो एक तो because you said कि because his image is of a Aam Aadmi, his image is of an honest person, and you are accusing him of corruption. Is that the ढोंग? Because his own actions all the time, मैं वही देखता था, करते खुजते थे खुद, मगर मुझे लगता था कि तुम अपनी रियलिटी को इतना आर्टिफिशियली क्यों क्रिएट कर रहे हो यार। तुम वो नहीं हो, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी गाड़ी में नहीं बैठेगा, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी बंगले में नहीं रहेगा, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी कहेगा कि मैं जनता के बीच में जाकर निर्णय लूंगा। वो उस समय भी मुझे मालूम था, जब इनके दोस्तों से भी बात करता था ड्यूरिंग लोकपाल बिल, ही वाज एन ऑटोक्रेट। वो सीधे सीधे कहते थे कोई डिसीजन ग्रुप में नहीं होता है, यही निर्णय लेता है सबको। तो मैं कहता वैसे आप कह रहे हो मोहल्ला सभाओं में हम डिसीजन लेंगे, हम सब चीज़ जन लोकपाल भी लोगों से बात करेंगे। मुझे मालूम था ये उस तरीके की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करता था। एक आध बार जैसे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बीच में ये उसमें आते थे इनोवा गाड़ी में, तो मैंने पूछा यार ये इनोवा गाड़ी वैगन आर में पहले आते थे। हाँ, नहीं वैगन आर तो बाद में चुनाव में ले ली। जब हम लोगों से मिलने आते थे नेगोशिएशंस में, तो 2011-12 में आप समझो इनोवा गाड़ी कितनी बड़ी चीज़ थी। आज तो चलो सरपंच भी लिए घूमता है। मैं कहता था ये गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? अरे लोगों ने दी है, ड्राइवर फ्री में चला रहा है। मैं ड्राइवर से पूछूं कहे भाई साहब कौन सा फ्री से, मैं फलाने टैक्सी स्टैंड से हूँ। तो मैंने कहा यार ये मतलब क्या है, हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं क्या? दुनिया में ढोंग करो, कम से कम हमसे तो ढोंग मत करो। तो ये बुरा लगता था कि एटलीस्ट सामने वाले का थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो यार, हम सब बेवकूफ़ बैठे हैं क्या? दैट्स व्हाट आई थॉट। एक होता है हम सब थोड़े बहुत ढोंगी हैं, ऑल ऑफ अस, वी हैव लॉट ऑफ लाइक्स डिसलाइक्स जो हम पब्लिक में नहीं कहेंगे। उतना ढोंग पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वो आपको करना है। लेकिन इस तरीके का तभी मैंने हमेशा से माना कि ये ढोंगी है। तो रोल प्लेइंग मतलब सारा टाइम, देखो रोल प्लेइंग होता है कि जब आपको लगता है रोल प्ले। आई थिंक ही हैज अ प्रॉब्लम, ही बिलीव्स इन ओके। जैसे जो मैंने ए मॉरल वाली बात की थी ना, खतरनाक तब हो जाता है जब आप जो आप कहते हो उस झूठ में आप विश्वास करते हो। So would you say that he's a megalomaniac or something? That he is. He is. Without doubt he is. Without doubt he is. उसको तो फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है कि वो जितना अपने आप को समझता है उसको लग रहा है वो मिल नहीं रहा है। कभी स्मिता जी आप बात करिएगा, बहुत से लोग जो आम आदमी छोड़ कर आए हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो कार्यकर्ता है जो बहुत कोर रहे, और मैं उनकी भी नहीं बात कर रहा 2-3 जो वेल नोन हैं, जो सही नहीं, जो सही में इनके साथ थे, जो समझ लीजिए घर द्वार में बैठ के काम करते थे, जो बैठ के रिपोर्ट्स लिखते थे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो एक पिक्चर सामने आएगी। उस सीरीज की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि देखते हैं हम सिंस द पार्टी स्टार्टेड, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, द लेटेस्ट इज Swati Maliwal. जी. Why is this? What kind of thing you draw from his personality or his style of politics? हाँ कि या तो they are complete loyalists
और दे आर कंप्लीट हेटर्स, मतलब कोई बीच में कोई नहीं है, मतलब नहीं नॉर्मल कार्यकर्ता जैसे आप कांग्रेस में है, यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो बिल्कुल ही लेट जाता है इन फ्रंट ऑफ द लीडरशिप. यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू गिव योर थिंग टू द पार्टी एंड द पार्टी रिवॉर्ड्स यू अकॉर्डिंगली. यू सी दैट. बट ये तो मतलब दे आर एब्सोल्यूट लंबा लेट जाते हैं या फिर दे हेट देम. देखो मेगालोमेनिया की सबसे बड़ा डर क्या है? somebody better than them losing, because megalomania comes when you have complete control over power. sole proprietorship की तरह है, कि कोई और भी मेरे चेक पे दस्तखत नहीं कर सकता. पर उन्होंने आतिशी को बनाया हुआ है चीफ मिनिस्टर. वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है सिसोदिया ना, भी है वो तो वहाँ मजबूरी है. सिसोदिया क्या है, किस हाल में आप देख लो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के भागनी पड़ रही है. और एक और चीज बताइए, ठीक है ये लोग हैं तो, पर कौन है इनके यहाँ लीडर, कौन इनके यहाँ डिसीजन लेता है, इनके यहाँ पोस्टरों पे किसके चेहरे आते हैं? आतिशी जी तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता कि आपको बेल इन 3-4 हम कंडीशंस में दे रहे हैं, तो आतिशी जी को थोड़ी बनाते. क्योंकि अगर इनको ये लगता कि काम हो रहा है, काम करना चाहिए, लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो जब जेल गए थे छोड़ देते. भाई हेमंत सोरेन जी ने भी इस्तीफा दिया था, लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था, उमा भारती जी ने भी इस्तीफा दिया था. उसके बाद आप बरी हो जाते या बेल मिल जाती, वापस सीएम बन जाते, कोई रोक थोड़ी रहा है. पूरा केसेस हुए हैं, आप क्यों उस पर चिपके रहे? क्योंकि एक तो इनको मालूम था कि अगर जेल के अंदर ये रहेंगे और बाहर कोई अगर चमक गया तो इनके हाथ से पार्टी फिसल जाएगी. तो जब बाहर आए और लगा कि अब मैं न दस्तखत कर सकता हूँ, क्योंकि बेल कंडीशन में था कि आप फाइल नहीं बुला सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, दस्तखत नहीं कर सकते, तो इनको लगा कि जो काम ये करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे. और क्योंकि वो बाहर हैं तो ताकत तो उन्हीं के हाथ में रहेगी. फिजिकली जब आप इन कंट्रोल ऑफ पावर होते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं. देखो ऐसा है, मैं जेल में हूँ तो मैं तिजोरी की चाबी आपको कैसे दे दूँ? अब घर पे मैं ऊपर बैठा हूँ तो किसी के हाथ भी तिजोरी की चाबी हो, अगर बाहर जाने के दरवाजे की चाबी मेरे पास है तो आप रखो तिजोरी की चाबी, ये रखें, किसके पास जाएगी? इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. एंड मेगालोमेनियक्स आर मोस्ट स्केर्ड ऑफ रिवोल्ट विद इन द रैंक्स, क्योंकि वो विभीषण ही इतने बड़े लंका को ढाता है. तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हु इज योर प्राइम कैंडिडेट हुम यू आर फाइटिंग? इज इट परवेश जी और इज इट अरविंद केजरीवाल? अभी मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अलग अलग रिएक्शन मिल रहा है. क्योंकि मैं क्या, जब भी मैं गया हूँ स्मिता जी, एक तो मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, आप आए होंगे, हर घर में मैं जा रहा हूँ, चाहे 4 मंजिल चढ़ूँ. मतलब आजकल टांगों की हालत जो है काफ़ी वैसी रहती है, मज़ा भी आ रहा है, कसरत पूरी हो रही है. नहीं, मैं रनिंग करता था बहुत, तो अब यार अच्छा लग रहा है कि यार मैंने रनिंग कंटिन्यू की तो कुछ थोड़ा सा स्टेमिना बचा हुआ है. तो उसमें क्या हो रहा है, लोगों से जब प्रतिक्रिया आ रही, अब वो बीजेपी वोटर है, कांग्रेस वोटर है, आम आदमी पार्टी वोटर, जिसका भी वोटर हो, रिएक्शन उसका अच्छा आ रहा है. वो हर तीसरा चौथा वोटर, दूसरा वोटर शीला जी की बात करता है, हर तीसरा चौथा वोटर उसके काम की बात करता है. वो कहता है नहीं आप उनके बेटे हो, या आप कांग्रेस पार्टी से हो, या आपकी एक स्मृति उनसे जुड़ी है, हम आपके साथ हैं. तो बहुत ज़्यादा बीजेपी और आम आदमी की चर्चा नहीं हो रही है. चर्चा जो दो एक चीज़ों की हो रही है, एक तो जो पैसे बट रहे थे परवेज जी के, उसकी कुछ चर्चा है, 2100 रुपये की चर्चा है. तो वो उनके जो ये कल्याणकारी, या आप जो भी उसको नाम ले लें, मतलब उसको गिफ्ट्स ले लें, पर्सनल गिफ्ट्स ले लें, दोनों चीज़ों की ले लें, उसकी चर्चा ज़्यादा है. मैंने कैंडिडेट्स की चर्चा सामान्य कम सुनी है. और जब मैं 2004 में, 9 में और 14 में पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था, तो कई जगहों पे लोग दूसरी तरीके से प्रतिक्रिया देते थे. यहाँ मैंने ऑपोजिशन की चर्चा, या तो यह है कि बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया मुझे, आए बोले क्या, क्यों, वाई एंगेज. सी समटाइम्स यू इग्नोर अ पर्सन इफ ही इज नॉट रेलेवेंट, बट फील्ड से वो नहीं लग रहा है. ये तो है कि कुछ रेलेवेंस मेरी है. परवेश जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से लोग बुलाए हुए हैं बिकॉज ही इज वेरी वेरी कीन ऑफ विनिंग एंड नाउ ही इज नर्वस इन दिस ट्रायंगुलर फाइट. तो हो सकता है कि वो एक और एरिया से चुनाव लड़े. ही माइट हैव अ सेकंड. व्हाट डू यू से? आई डोंट थिंक ही विल फाइट सेकंड. नो, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक वो, मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरे चुनाव से लड़ेंगे. पर अगर वो जीत भी जाते हैं तो चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट रूल्स ही कांट बिकम चीफ मिनिस्टर. ही कैन, बट देन ही विल गो टू जेल. उन्हें क्या फर्क पड़ता है? 10 साल कोई काम नहीं किया, 5 साल और नहीं करेंगे, रोते रहेंगे, रोज वहां से कहते रहेंगे मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा भाई जेल में है. और अगर ये कह के सरकार चल रही है और पॉपुलैरिटी बनी हुई है, ये अद्भुत है. ये एक ही चीफ मिनिस्टर जो कहता है मैं काम नहीं कर सकता, मुझे वोट दो, लोग वोट दे देते हैं. अद्भुत मामला है ये. मतलब नॉर्मली तो लोग वोट ये कहेंगे कि यार 1.5 करोड़ के लोगों ने वोट दिया है, हिम्मत होनी चाहिए ना, दहाड़ के काम करो ना. कौन रोक सकता है तुम्हें तुम्हारे अधिकारों में काम करने के लिए? तो उन्होंने यही कहा था शीला जी को कि अगर आप काम नहीं कर सकती तो हट जाइए, मैं करूंगा.
एंड उस टाइम उन्होंने पूरा लिस्ट दिया था कि सीएम घर में 34 12 AC था या 12 12 Okay. AC हैं हाँ. और सब चीजें। हाँ. ये भी पूछा था कि जो है इनके घर में जो पेट्स हैं उनका खाना कहाँ से हाँ, मेरे कुत्तों का खाना कहाँ से आ रहा है, ये भी RTI आई थी। हाँ. हाँ, तो- और अब आप शीश महल आपने देखा है वो हाँ, जो उनका हाँ, घर? उसकी फोटोग्राफ देखी मैंने। Photographs. हाँ, मैंने CAG रिपोर्ट भी देखी, सबसे पहले मेरे पास आ गई थी। वो कहाँ से घूम घूम के आ रही है तो कोई और ही जाने, लेकिन वो आई थी मेरे पास। उस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स आपको ऐसी लगी जो बिल्कुल अलग अलग जो देखो चीज़ 2-3 astonish चीजें करा यार, जिन्होंने ऐसा है, आपको। हमने मैं जो आप क्योंकि आप भी जो है सीएम हाउस को में रहे 15 साल, आपने भी देखा है, तो कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि देखो, मैं एक नहीं तो लगवा जैसे पाया। शीला जी के घर में रहे, पता नहीं आप भी गई होंगी कि गई नहीं, हूँ मैं। यू नो वो साफ सुंदर रखती थी, बट कभी एक्स्ट्रावेगांजा में नहीं थी। उनके सोफे ओफे कोई ऐसा नहीं था, नॉर्मली वो PWD इंडियन, टाइप हाँ, और इंडियन एथनिक टाइप की कर लेती थी वो। और 8 या 10 कमरे थे उसमें, और वो जो आपको याद होगा, इस कमरे से शायद 15 गुना बड़े कमरे थे। 2 AC नहीं लगेंगे तो वहाँ गर्मी नहीं जाएगी। वो बैट्स थे, वो हाँ, 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 hanging हाँ, bats बैट शैट्स बहुत थे। outside हाँ, in that तो garden. उस घर में जहाँ 8-10 कमरे हैं, 12 AC, बट वो माहौल उसने बना लिया। ये तो उसकी तकनीक है भाई। आप किसी कॉमन घर को एक सीएम हाउस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और शीला जी का तो आपको मालूम है ओपन था, ठीक है, वो उन्होंने जो कंपैरिजन किया, लेकिन वो घर का हो या वो, जब मैं शीश महल को देखने लगा तो मैंने देखिए कई सीएम हाउस देखे हैं। कांग्रेस में रहा हूं तो हमारे कई मुख्यमंत्री रहे हैं, ऑपोजिशन के भी गया हूं मैं, शिवराज सिंह जी के यहाँ गया हूं, उमा भारती जी का घर देखा है, महाराष्ट्र में सीएम का हाउस देखा है, गुजरात में देखा है, कर्नाटक में देखा है। ऐसा घर तो मैंने नहीं सुना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल What नहीं। struck you the most? उसका जो एक एक्स्ट्रावेगेंस है, देखो जैसे थोड़े हम लोग ओल्ड फैशन्ड हैं, ठीक है, हाँ. और आप अपने पैसे से कुछ भी खर्च करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हमेशा कहते हैं नोबो रेस, शो ऑफ, पर वो अलग बात है। दैट इज योर पर्सनल चॉइस, यू नो। आप 5 करोड़ की गाड़ी रखो, 2 करोड़ की रखो, आप ज्वेलरी पहनो, कुछ पहनो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, यू नो। एंड पर्सनली आई कैन हैव ए कमेंट ऑन यू, दैट इज गॉसिप, यू नो। गॉसिप हैज इट्स ओन प्लेस। पर पब्लिक एक्सपेंडिचर पे अल्टीमेटली तो आप जो कहते हैं ना प्रधान सेवक, और ये तो अपने आप को और भी बेटा भाई पता नहीं क्या कहता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे इस तरीके की इमारतें बनाकर आप करना, ये सिंबल है इंपीरियलिज्म का, ये सिंबल है राजे रजवाड़े का, शहनशाहत का, ये सिंबल है महाराज होने का, सुल्तान होने का, यू नो, क्या होते थे पहले जो बड़े बड़े होते थे उस तरीके का होने का। ये सिंबल एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लीडर का नहीं है बिल्कुल भी। There was a time मायावती जी मायावती जी को भी इस बार इस इशू पर काफी हाँ, क्रिटिसिज्म फेस बहुत, करना पड़ा। बहुत, बहुत वो जो face करना पिंक पड़ा। मार्बल हाँ, हाँ, हाथी, हाँ, वो बिल्कुल, वो बिल्कुल। अलग बात है कि बाद में इट बिकेम कॉमन एरियाज फॉर पीपल टू वॉक अराउंड एंड ऑल दैट, बट स्टिल उनको वो क्रिटिसिज्म हुआ हुआ कि ये जो ये शानो शौकत जो है, इट डजंट गो विद द इमेज ऑफ बीइंग अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स जी, द जी, रिप्रेस्ड जी, जी, communities. कम्युनिटीज, यू नो, कि आप उनकी तरह आप उनको रिप्रेजेंट करते पर हैं। देखिए स्मिता जी, एक फर्क है, कभी जी। कम से कम मायावती जी ने कभी पब्लिकली ये नहीं कहा कि मैं सादगी का जीवन जीऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं एक एस्पिरेशन है, एक दलित लोगों की एस्पिरेशन है कि हम भी इस तरीके की इमारतों में रहें। उसका एक स्पेस है सोसाइटी में। जी, मैं जी। उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट एक उसका स्पेस है सोसाइटी में। इनका जो ये कहना है, और मायावती जी खुद मेहनत करके, जैसे सर कभी उन्होंने अगर कुछ पहना या कुछ अच्छा पहना, उसका ये नहीं कहा कि मैं हिपोक्रेट हूँ। जी जी शी डिड व्हाट शी डिड, वी मे लाइक हर पॉलिटिक्स, नॉट लाइक हर पॉलिटिक्स, और उन्होंने जहां से वो राइज करके गई हैं, Amazing story. अमेजिंग स्टोरी है, यू जी, बिल्कुल। नो। अनफॉर्चुनेटली और चीजों में फंस गई बाद में, बट एक सम्मानजनक कहानी है, कहाँ वो बढ़ के कहाँ गई। आप आते हैं बिल्कुल कुछ और चीज बेच के, औरों को बदनाम करते हैं उससे 5% जिंदगी जीने के लिए, 12% के एसी में आप किसी को अय्याश बता देते हैं, तब आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो गई ना ये। फिर जैसे मैंने देखा, भाई मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 4-5 साल रहा हूँ सेंटर में, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपको मालूम है बड़ी ताकतवर कमेटी है। हमारे पास बहुत तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत गड़बड़ियाँ, मिसडिमीनर्स हम लोग, और अज्यूम करप्शन की हम लोग चीज़ें अपनी रिपोर्ट्स में देखते हैं, और मैं थोड़ा गंभीरता से भी लेता था। और हमारे पास अच्छे चेयरमैन थे, संतोष गंगवार जी थे, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी थे, उनसे मज़ा भी खूब आता था। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारा कोई पार्टिजान इंटरेस्ट नहीं होता। देयर इज नो बीजेपी, नो कांग्रेस मेंबर्स। हम लोग एक ये होता है सेंटिनल्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर जिसको कहते हैं, या ऑफ पब्लिक मोरालिटी। तो आप 8 करोड़ का सैंक्शन लेते हो किसी बंगले में, और वो 33 करोड़ का हो जाए, बात ये नहीं कि इट्स ओनली 23-24 करोड़,
सरकार में 2 रुपए भी ओवर वो एक्सेप्ट फॉर आइटम्स जहां इन्फ्लेशन अलाउड है, जैसे सीमेंट में 2-4 चीज़ों में, आयरन स्टील में 4 गुना कोई कीमत बढ़ जाए, अनहर्ड ऑफ है। अगर हमारी कोई पीएससी रिपोर्ट आती और कोई 500 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर उसमें 2000 करोड़ का हो जाता तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो पटाखे छूटने लगते। मतलब ये बुरा हाल हो जाता कि हम उस मिनिस्ट्री को तो छोड़ते ही नहीं। मतलब कहाँ कहाँ आप 5-5%, 10-10% के कॉस्ट एस्केलेशन में पसीने छूट जाते हैं डिपार्टमेंट्स को जस्टिफाई करने में, और जबकि टोटली जस्टिफाइबल कॉस्ट होते हैं। हम लोग देखते हैं पसीने छूट जाते थे बड़े बड़े सेक्टरियों के, जिनकी हम अदरवाइज तारीफ करते थे। फ्लाईओवर बना रहे हो आप या कुछ ऐसे कर रहे हो, होता उसमें है। अब जैसे सीमेंट बढ़ गई, सीमेंट इज बेसिकली ऑन रेट्स, आयरन स्टील बढ़ गया या कुछ और हो गया, तो दूसरा इसका जो कंपेयर टू हिज टेंडेंसी, आपको याद होगा ये बार बार एक फैलाते थे कि मैंने फ्लाईओवर्स के कॉस्ट कम करा दिए। टेक दैट एंड आई विल टेल यू, सिंस दैट अपॉर्चुनिटी हैज कम, दैट्स अ स्टोरी आई ऑलवेज टेल, दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट ही इज अ फ्रॉड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एंड इसमें एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द एग्जांपल्स दैट ही गिव्स। आपको याद होगा ये बार बार कहता है मुकरबा चौक का फ्लाईओवर है जो 430 करोड़ में था, मैंने 270 करोड़ में कर दिया। बिल्कुल सही है, लेकिन लेट मी गिव यू द डेटा। 2012 में ये प्रोजेक्ट डिजाइन होता है। इनफैक्ट ऑल हिज फ्लाईओवर्स 90% वर डिजाइन्ड एट शीलाजी's टाइम एंड स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2012 में डिजाइन होता है और उसका एक डीपीआर बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 433 करोड़ में। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं मालूम, आई कैन सप्लाई यू द डेटा इफ यू वांट टू शो। उसी तरीके से 2012 के एंड में कैबिनेट दिल्ली गवर्नमेंट की टेक्स अ डिसीजन फॉर सम चेंज इन टेक्नोलॉजी। शीलाजी इज द चीफ मिनिस्टर। 2013 के जनवरी में कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड फॉर 270 करोड़। ओके, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड इट इज पास्ड, एंड देन अबाउट 3-4 ईयर्स लेटर वो 270-280 करोड़ में बन जाता है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट किसके समय हुआ? शीलाजी के समय हुआ। 430 का 270 करोड़ का क्या हुआ? आपके समय में हुआ। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट डिड समथिंग ऑनेस्ट। हाउ कैन यू से यू टुक द डिसीजन? एंड बिना किसी शर्म के ही सेल्स इट एज अ मैटर ऑफ हिज ऑनेस्टी। देन यू शुड हैव सेड दैट शीलाजी वाज द ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर। जिसने किया वो तो भ्रष्ट है और जिसने उसकी वाहवाही लूटी वो ऑनेस्ट है। ऐसे करके इनके जितने क्लेम्स हैं ना स्मिता जी, सब के सब अकॉर्डिंग टू दिस है। मैं वो तो एक एग्जांपल ही दे रहा हूं। जब आप ढोंग की बात कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि नोइंग द फैक्ट्स आप इतना कैसे झूठ बोल सकते हो? आई मीन टू मी इट्स अमेजिंग। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। What Siddharth asked you, what is that one thing which जो खटकता है आपके लिए? For me it was that I haven't seen the houses yet, but my thing is that जब आपको पता है एक्साइज के ऊपर आपको the whole thing, the mini bar, and then you have a mini bar. For me that was the first thing, that why would you have a mini bar when you know the liquor scam? स्मिता जी, my grandfather has been a minister, ठीक है, बहुत समय पहले थे। शीलाजी has been minister with राजीव जी, चीफ मिनिस्टर। हर बार हम लोग जब गए हैं, घर में गए हैं, फिर घर में कंस्ट्रक्शन होती है। जब मैं एमपी रहा हूँ, नया घर में गया हूँ, किसी से भी जब आप नए घर में जाते हो तो हर चीज़ जो बनती है आपसे पूछी जाती है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम था। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। और जब आपका घर बनेगा, कोई भी नया बनेगा, तो आपसे पूछा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो ये कहना कि इनको नहीं पता था कि वो मिनी बार है, ये मैं मान नहीं सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। और आप सर मिनी बार आप वहाँ से कैसे कर लेंगे? मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मैंने कहा, जब मैंने मिनी बार देखा तो मुझे लिकर स्कैम याद आ गया। बट इट्स रिलेटेड और नॉट, आई डोंट नो। बट इन द माइंड ऑफ अ वोटर आल्सो ही विल थिंक दैट ओनली ना, कि अगर वो नहीं भी विश्वास करता कि कोई लिकर स्कैम हुआ है, ही इज गोइंग टू थिंक यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई वुड यू हैव अ मिनी बार जब पूरा कैंपेन लिकर स्कैम के ऊपर। Also there's another thing, कितने लोग जेल गए हैं उस I have no लिकर problem in स्कैम में? anybody drinking. I have absolutely no issue. exactly, no, it's not a moral issue. And I don't like this hypocrisy कि पीने नहीं, वाले नहीं। खराब हैं और नॉन पीने वाले नहीं, अच्छे हैं. I don't get बिल्कुल into that. But if you remember, our constitution directive principle says that we should work towards prohibition of liquor. It's still there in the constitution. तो कम से कम मिनी बार तो मत बनाओ यार. At least in a सरकारी बंगला. आप अपने कमरे में क्या करते हो, नहीं करते हो, आप चाय पियो, लस्सी पियो, विस्की पियो, that's completely your choice. Okay, you don't have to be directed by every word of the constitution, but it gives you some semblance of what the government should or should not do. उसमें भी इतनी ब्रेजननेस, I mean that shows कि वो जो मेगालोमेनियाक वाला वर्ड है ना, कि मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी सरकार नहीं है, ये मेरी हुकूमत है.
अब तो सीएजी की जो रिपोर्ट सामने आई, आप भी कह रहे हैं, बीजेपी भी उस लाइन को सेम कह रही है, इवन हाई कोर्ट ने भी उसको ये किया है. डू यू थिंक दैट इट गोना रेजोनेट टू द पीपल इन दिस इलेक्शन? देखो, वो हम नहीं कह सकते कौन सी चीज़ पब्लिक में जाती है और कौन सी चीज़ पब्लिक में नहीं जाती, लेकिन शराब वाली बात गई है, बहुत लोग इसको बोलने लगे हैं. देखो, जो हमारा वीकर सेक्शन है उसको एक थोड़ा सा डर ये लग रहा है, उसको ये लग रहा है कि यार ये हमारे में बांटता है, हमको फ्री करता है, अच्छा आदमी होगा, है ना. जो आदमी इस तरीके की सहूलियत देता है उसके प्रति एक थोड़ी सी सिंपैथी हो जाती है, और शायद इसलिए वो बड़ा सवाल नहीं देख रहा है. लेकिन आज उसके भी दिल में घुस गया ये बात. और ये स्मिता जी छोटा नहीं है, ये 2000 करोड़ का जो लॉस है, आपको याद है कोल में आता प्रिजेम्पटरी लॉस, तो अगर वो यहाँ माने 6 महीने में स्कीम बंद हो गई बिकॉज द स्कैम वाज डिस्कवर्ड, तो इसका मतलब 1 साल में घाटा होता 4000 करोड़ का, 4 साल में घाटा हो जाए 16-17 हजार करोड़ का. दिस ऑलमोस्ट 17,000-18,000 करोड़ स्कैम विच इज ह्यूज. हमारी टोटल बजट 76,000 करोड़ की है, जिसमें हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर 39,000 करोड़ है और डेवलपमेंट के लिए खर्च करने के लिए सिर्फ 37,000 करोड़ है. रिमेंबर दीज नंबर्स व्हेन वी कैलकुलेट हाउ मच दीज वेरियस स्कीम्स, न्यू फ्रीबीज विल नीड, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. It's actually a huge number, 2,000 to 3,000 crores of loss in a year, which means so many schemes, so many schools, so many hospitals you could have actually built by that amount being recovered. And who have you given it to? चलो मैं मान सकता हूँ कभी कभी होता है कि एक इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव चीज़ के लिए आपने टैक्सेशन कम लिया, कि भाई इंसेंटिव देना है, इंडस्ट्रियलाइज होना है, तो चलो एक्साइज कम कर दी, 10 साल के लिए इंडस्ट्री लग गई. आपने जीएसटी कम कर दी, हमारे यहाँ ट्रेडिंग बढ़ गई. ठीक है, हमने क्या किया कि भाई हमने से फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. They have this fantastic model, right? They've the money that they made through through what they were planning to do, they were spending it on giving free schooling, electricity, the mohalla clinic. Yeah, let's get into that. पहली चीज तो ये 2000 करोड़ का तो मैंने ये कहना कि if you had made a loss for something which added to the economy, I could have understood. You made it to fill the pockets of alcohol contractors, ना. भाई एक्साइज तो हिंदुस्तान में हर फाइनेंस मिनिस्टर कहता है, मैं इसलिए एक्साइज पॉलिसी पे कंट्रोल करता हूं कि सरकार में रेवेन्यू आएगा. तो आता रेवेन्यू स्पेंड करते तो मैं मानता ना, ये तो चला गया रेवेन्यू. और दूसरा, भाई फ्री एजुकेशन तो हिंदुस्तान में आज से नहीं, पब्लिक एजुकेशन तो हैज बीन फ्री फॉर इयर्स. कुछ स्टेट्स मॉडल स्कूल्स, मॉडल क्लिनिक्स, मॉडल स्कूल, मॉडल क्लिनिक्स तो नहीं है इसमें. तो इफ आई कैन गिव यू नंबर्स, आई विल प्रूव टू यू विद इन 2 seconds. Foreign media also was saying that these Yeah, clinics were highly covered in the international media, sir. New York Times had a story. They had a story on their school system. On their but please remember 2012, let me give you a small example. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हड़काया, उसको कोई पीआईएल गई कि दिल्ली सरकार के स्कूल बहुत खराब है. आपको याद होगा ये 11, 12, 13 का वही सुप्रीम कोर्ट है जो कहता था केज्ड पैरेट. और अगर आप माने, आई एम नॉट सेइंग कि कोर्ट्स आर पॉलिटिकली बायस्ड, बट यू कैन नॉट से कि कोर्ट्स कोई कांग्रेस प्रो बायस थे. ठीक है, बड़ी लठ बजाते थे कांग्रेस की. मैं तो स्पोक्समैन था उन दिनों में. उन्होंने जब दिल्ली सरकार को समन किया, दिल्ली सरकार ने डेटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट मेड एन ऑब्जर्वेशन दैट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स आर सो गुड दैट ऑल ऑफ इंडिया शुड एमेलिरेट देम. सो दिल्ली गवर्नमेंट को तो तमगा शीला जी के समय मिल गया था. एंड लेट मी गिव यू 2-3 फैक्ट्स टू शो किसकी एजुकेशन बेटर है. शीला जी व्हेन शी केम, 12वीं में 64% बच्चे पास होते थे. When she was thrown out of government, 89% were pass marks of class 12 CBSE boards. Increase of 25% in 15 years. आपने ये नंबर नहीं सुना होगा because she never beat her drum. इनके समय में last year 23 pass percentage of 12th was only 91%. Today it's 95-96%. तो पिछले साल ले लो तो 2% का इंक्रीज इन 10 years. इस साल ले लो तो 6 or 7% का इंक्रीज इन 10 years. 7% 10 साल में, 25% 15 साल में. आई एम नॉट सेइंग दे हैव नॉट वर्कड ऑन इट. इट्स नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दे हैव जस्ट अबाउट बिल्ट ऑन व्हाट शीला जी बिल्ट. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. लुक एट नंबर. दे से चिल्ड्रन हैव इंक्रीजिंगली कम टू दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स. ओके, कि प्राइवेट स्कूल से निकल के वो गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं. ओके, तो लेट्स टेक द एनरोलमेंट नंबर्स. व्हेन मैडम बिकेम सीएम, दिल्ली में 8 लाख बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, दिल्ली सरकार के. जब वो गई हैं तो 16,10,000 बच्चे थे. एन इंक्रीज ऑफ डबल इन अबाउट 15 years. टुडे इट्स ओनली 17,50,000. ओनली एन इंक्रीज ऑफ 1,40,000 इन 10 years. वो यूं गया, ये यूं है. तो बच्चे कब कूद कूद के जा रहे थे सरकारी स्कूलों में भाई, उस समय ना. ओके,
The other thing is that if we just take the increase of numbers, pace in Mrs. Dixit's time, today there should have been about 24 lakh children in Delhi government schools. तो सवाल तो बनता है कि वो 7 लाख बच्चे गए कहाँ? Then he says कि आप spend more money. More money is never an issue. आपने देखा होगा it's always money spent as percentage of GDP. वो बजट तो बढ़ रहे हैं भाई, आज 2 रुपए है, कल आप 3 रुपए कमा रहे हो, परसों 5 रुपए कमा रहे हो. परसेंटेज नहीं. हाँ. शीला जी जब हारी थी तो they spending about 1.4%, 1.42% of GDP. Today is actually a little less than that. It's 1.36% of GDP. तो खर्चा भी एक्चुअली कम हुआ है. परसेंटेज ऑफ पासिंग कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जॉइनिंग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हैज ऑलमोस्ट रिमेन द सेम. इट शुड हैव एक्चुअली गॉन अप एस्ट्रोनॉमिकली. तो वेयर इज द क्रांति इन एजुकेशन? आपने कमरे अच्छे बनाए, वो शीला जी के समय भी बन रहे थे. मैंने इनको फोटोज दिखाई हैं स्मिता जी. एक प्रोजेक्ट रूपांतर शुरू हुआ था, उसमें अगर मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा उस समय की, तो आप कहने लगेंगे यार ये तो वही कमरे जो केजरीवाल बना रहा है. द ट्रेंड स्टार्टेड एट दैट टाइम बिकॉज क्या हुआ था, जब मैम बनी थी ना सीएम, तो उस समय पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, कोई हमारे यहाँ 800 850 स्कूल होते थे, उसमें 100-125 टेंटों में चलते थे और पोटा केबिन्स में चलते थे. So the first effort was to build new schools. About 150 were built and convert all the old schools into basic decent buildings. तो पहले तो जो कबाड़ था उसको ठीक किया, और नेचुरली इसमें टाइम लगता है भाई. स्कूल बिल्डिंग कई जगहों पे तो ऐसे स्कूल बने थे जहां ट्रकें नहीं जा पा रही थी, तो आधे किलोमीटर दूर ट्रक सीमेंट गिरती थी, लोग बोरियों से ले जाते थे और बिल्डिंगें बनती थी. तो वो कोर काम उस समय हुआ. उसके बाद इन्होंने उस पर सुंदरता शुरू की. कांग्रेस ने 2008, 9, 10 में की, फिर 13 में हार गए. हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने काम नहीं किया, पर जो किया सामान्य काम किया. Not extraordinary, Do you think not that the revolutionary. people are tired and exhausted of the claims made by the Aam Aadmi Party? Just because ये जो आप जो भांडा फोड़ कर रहे हो अभी, the point is that the BJP didn't do this because the thing was to compare it with Sheila Dikshit's Yeah, tenure. that's the problem. So they didn't do it because how do you compare it with the Congress's tenure? Because then it shows up that ki Congress was better. So you're doing the job for the Congress party by comparing it with the previous Right. regime. So BJP wasn't doing but that. स्मिता जी, they could have actually also done because you're also comparing his 10 years. इतना नहीं होता. देखो, अगर शीला जी हार what गई he थी, said, you हाँ. could have actually done that. Yeah. You know, I think if they were savvy, because लोग उनकी बात फिर भी 2017, 18, 20, 25 में हमारी credibility was But bit of a doubt. it would have looked like they are batting for the Congress by saying कि भाई तुमने तो कुछ किया नहीं क्योंकि देखो तुमसे स्मिता पहले जी, शीला जी ने किया. BJP, it's not a party I like, it's my opposition party, but BJP is a smart party. Okay, they could have taken ways out, which is why I said I don't think they were that serious about Delhi. You know, आप यार इतने स्टेट जीत जाते हो, पर खबर है जहां सब कहते हैं कि आप बुरी तरह हार रहे हो, आप जीत जाते हो, तो आपकी रणनीति में कुछ तो होगा कि आप एक खराब सिचुएशन को अच्छा कर सको. तो जहां सिचुएशन आपके लिए बनी बनाई थी, क्यों नहीं आप निकाल पाए? तो सर, इसमें आपको नहीं लगता कि 10 साल में एज ए अपोजिशन आप लोगों ने भी एक रोल नहीं निभाया? आप लोगों के यहाँ भी लीडर्स जो हैं दिल्ली के इश्यूज नहीं उठाते रहे. आपने भी 10 साल चुनाव से बिल्कुल अलग अपने आप को रखा. 14 के बाद 19 का चुनाव आपने नहीं लड़ा, शीला जी ने लड़ा. असेंबली आपने नहीं लड़ी. तो आपको नहीं लगता कि एक अपोजिशन की जो वॉइस दिल्ली में थी वो भी कांग्रेस भी नहीं बन पाई? ऑल्दो आप लोग चुनाव जीते नहीं जीते, इट डजंट मैटर. समय भी था. देखो, एज आई सेड, और आज जो मैं आज कह रहा हूँ लोग सुन रहे हैं. एक समय होता है जब नहीं सुनते हैं, पॉलिटिकली टाइम आता है, और अगर आप गलत समय पर अपने तीरों तश्कर चला दें तो फिर वो लंबे नहीं चलते. शीला जी को अगर यही 8 में, 9 में, 10 में, 11 में भ्रष्ट कहते तो शायद कोई नहीं मानता. ठीक है, 12, 13 में जो भी कारण थे, माहौल बना तो सब चीज़ चिपकती चली गई, है ना. वही बिजली के बिल तो पहले भी आते थे, लोगों ने अच्छी बिजली देखी ना. 24 घंटे बिजली आ रही थी ना दिल्ली में, तो लगा कि नहीं इन्होंने काम किया है. चोरी कम हुई, 60% से गिर के 10% पे आई. खुद जो रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, अगर आप 2018 का वेबसाइट देखें ना दिल्ली सरकार का, जिसमें मनीष सिसोदिया जी की फोटो है, तो वो प्राथमिक लाइन में कहता है कि जो कुछ इंप्रूवमेंट दिल्ली में हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द 2002 रिफॉर्म्स, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट वी हैव रिड्यूस्ड आवर लॉसेस एट द एवरेज ऑफ 3,000 crores पर मंथ. ओके, सो some senses they also have to ultimately give credit to her. लेकिन मैं कह रहा हूँ उस समय यही सवाल अगर कोई शीला जी पे लगाता तो कोई नहीं मान रहा था. जिसके यहाँ मीटर नहीं लगे थे उसको 500-500 के बिल देने पड़ रहे थे, फिर भी वो शीला जी के प्रेज कर रहा था और वोट कर रहा था. तो समय होता है,
अब मुझे लगता है पिछले 3-4 साल में समय आया है where now when we speak, people listen to us. Okay, finally, I want to ask you this question that as a voter, why would anybody vote for the Congress party in the sense that what can you do if you come to power? Can you reduce the pollution? Can you tell the Punjab farmers कि आप पराली के लिए कुछ करो? Can you tell the Punjab government to stop the parali burning? Can you do anything for this city without the LGs, with the tussle that between the Chief Minister of Delhi and the LG? Okay. What can you do? Smita ji, let me just take this example of air pollution to show how we are different and we can be different. देखिए, पहली चीज ये है कि पराली इज ओनली 10 to 15% ऑफ द टोटल पोल्यूशन. कोई कहता है 7%, कोई कहता है 10%, कोई कहता है 15%. ओके, लीव दैट असाइड. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के अंदर 3 या 4 बड़े भारी कारण हैं जिस कारण से हमारे यहाँ पोल्यूशन होती है. एज, हमारे यहाँ मैसिवली डर्टी सुएज लाइन्स, जिस कारण से सड़कों पे कूड़ा आता है. Sewage is not washed away and it rises in the air. That's one of the major reasons. Second is falling public infrastructure. हमारी बसें आज कम हो गई हैं पहले से. You know that ridership in DTC, including the cluster buses, is actually lower than in Sheilaji's time. उस समय average ridership 43 lakhs थी, आज 41 lakh है. Whereas it should be around 60 lakhs. So you have to get public transport back. That is when you reduce vehicular pollution. You have to get traffic back on edge. आज आप जानते होंगे नॉर्मली आप फर्स्ट या सेकंड गियर पे चलते हैं. मैम के समय ये तो था कि ट्रैफिक जैम्स नहीं दिखते थे. तो जब गाड़ियां खड़ी होंगी तो पोल्यूशन होगा. डीजल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, लोअर गियर पे जलेगा, 8 से 10 गुना पोल्यूशन होगा. तो अगर आप सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप इस तरीके की चेंज कैसे ले पाएंगे. फिर देयर इज मैसिव इलीगल कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन दिल्ली. And if every time your MLAs and your councillors collude on massive illegal construction, धूल उड़ेगी, सीमेंट उड़ेगी. तो मेरा ये कहना है ये 3-4-5 चीज़ें तो ऐसी हैं in which you can do substantive work. I'm not saying sufficiently full 100%. आप इसको 30-40-50% भी अगर reduce कर सके, but at least करते तो दिखो. I'm not saying we'll be able to achieve it, but all that I can say is that at least Sandeep Dikshit and my party will be seen working towards that. And the other thing is, you can work with any LG. इनकी तो किसी LG से नहीं पटी. क्या सब इतने खराब हैं? भाई वो भी इंसान हैं और सीमाएं बांधता है संविधान. बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप बात करके, परसुएट करके, आपको पब्लिक में अगर लड़ाई किसी से दिखानी है तो वो कैसे आपसे कोऑपरेट करेगा. उस व्यक्ति का भी तो स्वाभिमान है. आप तो पहले कदम पर उसको कह देते हो तुम चोर हो, तुम पैसा खा रहे हो, तुम कहाँ से पैसा कमा के आए, तुम कहाँ से क्या करके आ रहे. यार तुम्हें उसके साथ काम करना है. चुनाव आए, सारी अपनी रंजिश उतार लेना. शीला जी ने भी तो काम किया था ना. आई डोंट थिंक कभी ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वॉज फुली कोऑपरेटिव. चाहती होगी हर चीज में कि दिल्ली सरकार सारे काम कर ले, कि वाहवाही लूट ले. वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी तो सर्वाइव करती है. तो मेरा ये कि कम से कम कांग्रेस होगी तो आप बहाने नहीं सुनोगे. Okay. No, I will not put, or my party will never put the blame on the LG. I'm sure they will, or they might try and create problems, but there are ways of getting out of any problem. On that note, thank you so much for sparing the time and coming here, and wishing you all the best from us Thank you. for the election. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. It was very enjoyable. Thank you. Thanks. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.